Hi, good evening, friends. Welcome to another session with Rahul, Poonam, and Abir. So we are an unschooling community called The Tribe, and Rahul, Poonam, and Abir are a very integral part of the tribe. So recently, they've been to a very, very fascinating and exciting adventure, which we want to hear about from them. Rahul, are you there? Yes, we are here. Okay, great. I think before हम कुछ भी बोलेंगे, how we met में छोटा सा kind of connection दूंगी. I think it was a year, 2 years back, definitely 2 years back, because 2 साल से तो COVID ही चल रहा है. So we, I think randomly, I connected with Rahul randomly but very intuitively. Through another common friend, and because he runs a fish culture called Conserveda, right? Yes. Conserveda Aquatics, so which he'll talk about more. So हमारे बच्चे तब छोटे थे, and we were obviously very excited कि ये क्या होता है, and taking our kids not to a typical aquarium, but a space where you can see how fish are bred and connected, and itni varieties. So तब हमारा connect हुआ, and जब हम राहुल के घर पहुंचे तो I think एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी, we were just kind of fascinated by his house treasures. क्या करते हैं Poonam and Rahul. So that's been again a very, very great journey for us, learning from each other. And अब जब इन्होंने ये कहा कोविड के दौरान कि हम ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी वेरी हैप्पी, बट all of us, I think, very safely can I say that we were endlessly happy कि ये तो घूम आए और हम लोग घर में हैं, बैठे हैं. But of course, thankfully, things are opening up now, and we are connecting, and so yes, over to you, Poonam and Rahul. A very warm welcome to the Tribe Evening session, and we would love to hear about what happened, how it happened, and where is it coming from. So yes, please join in and have fun. So guys, please, if we can keep ourselves muted through the session. जब पूनम और राहुल हमसे बात कर रहे हैं तो हम म्यूट रखेंगे. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, you can either type them and they can read it as and when, or whenever they kind of have shared the journey, we can open the platform and have an interactive session. जैसे भी पूनम और राहुल को ठीक लगता है ना. And we would love to see Abir कहीं बीच में, जितना भी वो comfortably हमसे बात कर सकता है. Yes, it actually depends on him. Currently, he's in garden, so right now he's outside. No worries. Yeah. So have fun. All the best, and waiting to hear your stories. Yes, thanks. Okay, hello friends, and thank you Ashita for warm welcome and एकदम अच्छा वाला introduction जो मुझे थोड़ा nervous कर रहा है. But yes, thank you Tribe for asking us to speak or session conduct करने के लिए, so that we can connect with more people and tell our experiences, because we like to tell our stories. So yes, as a travel. Okay, just I would like to tell you about myself first. As myself, Rahul Kolekar. I am from Dahisar, Mumbai. So I'm by education, I am a zoologist. That is my more than education. That is my passion. And currently, I'm running a small-scale ornamental fish culture unit named as Conserveda Aquatics. And we're also conducting different type of experiments there, where we also trying to propagate leeches. And my motto is we have to less dependent on our ecosystems for our needs, and whenever and wherever the needs arises, we should be able to culture our own requirements. So I'm focusing on aquatic biology per se, and as I'm culturing ornamental fishes, leeches, and simultaneously there are more projects coming up to being less dependent on wildlife, so that we can propagate them and we can supply the market needs.
simultaneously, me and Poonam both are running Conservate Outdoor, where we promote educational nature trails, treks, and wildlife safaris. As we both are very passionate about travel and nature, we try to keep it as close to nature in that perspective. So we conduct similar type of project. And recently, we also started a Conservative Lifestyle, a small initiative where we are promoting eco-friendly goods, things made up of neem wood, coconut wood, coconut coir, coconut leaves, and coconut shell, and bamboo, a similar kind of project we're trying to promote. It's kind of an alternative for plastic and other things which we are nowadays using. And we say कि ये use करना चाहिए, ये use नहीं करना चाहिए, but we are trying to come up with answers here through Conservative Lifestyle, where we can promote a healthy and environment friendly lifestyle. So yes, this is me and Poonam. Hi, this is Poonam. Basically, yes, I did my master's in labor laws and all the stuff. Then I worked for almost for 8 years in corporates. Then I left the job. I just wanted to try out new things. Just wanted to see what other things can be done. Okay, so and all the rest of the things I guess Rahul have mentioned. So we'll just straight away come to this part of our journey. So basically, we are travel enthusiasts, so we always love to travel and we used to roam a lot. Okay, so when Abir had become 6 months old, we have started from there only. So when he was 6 months old, we been to Goa, then we been to long road trips, but it used to be to our relatives places or friends or family, things like that. Then we have taken him to Himalaya also once when he was 1.5 years old, and for a trek, and after that lockdown has started, so there was a long gap when we couldn't go out and do something more adventurous. So that was the thing. And sorry Poonam, I'll just button nahi, I just want to say this. Yes. I think wo jo aapki Himalaya ki trip thi, that was the most inspirational and motivational for all of us ki itne chote bacche ko, because hamare bacche bhi, they were like about 2 years and 3+ and all. I said jab itne chote bacche ko aap ja sakte hain, what are we doing? Even we need to kind of spread out and explore more spaces. So thank you so much for inspiring us, both of you. Thank you, Ashita. So that was the thing. So first of all, actually, how we should I directly start on the trip, or do you want to know how we have started with unschooling thing? However you feel, because okay. I think go hand in hand. So yes. aapko lagta hai that the journey started for you as a family. Yes, cause the thing is, Tribe is it has that you are one of the inspirations, I would say, because you started this amazing place called the Tribe. Because I remember when you guys had come to our place, that time Abhi was, I guess, 8 months old or something like that. And at that point of time only, from somewhere I got to know about the concept of road schooling and unschooling. And then I wasn't very sure about it, but you guys were actually came, and I saw you, I met the people, and I was like, okay, I got a little confidence about it. Okay, other people are also doing it, and luckily kids of his age group are also involved in all these things. So it was basically a booster to my thoughts, that yes, this thing is doable. So when we got to know more about it, we thought, because see, unschooling also, or like homeschooling also, every family, it is not anything which is structured, right? Every family will have a different path towards this journey. Everyone's way of looking at it can be different. So for us, it was a traveling, which we thought, traveling we should be doing. So then we thought, okay, so what can be done? So for us, it was like a long gap due to COVID. So we decided, okay, now just let's start going out. Okay. And we know actually all those COVID things were there, but at that point of time, second wave it wasn't there. Omicron nahi aaya tha, to wo beach wala period tha actually. And we thought, okay, so winter will be a good the actual season. period where we thought ki baba nahi abhi restrictions thode kam hone lage hai, then this is the right time to start. Even Tribe had started at that point of time. So we thought, okay, so now as all the things are
opening up and all those things. So we'll go for this trip. So we just Ashita Maushi आले. Sorry. Sara. Okay. So we were like, okay, then we should go out for this journey. And then we were like deciding about the road also, which road should we take. First we had started that we'll go to the friends and relatives places, and we thought it will be like we'll just go, we'll spend 2-3 months on the road and then we'll come back. But then Rahul came up and he was like, no, we will still follow some structure in that journey. So then we decided, okay, what we'll do is we'll just at least decide a route to it. Okay, so then we decided, okay, so let's do the coastal India. So that's how it came up. So in that also, when we started thinking of, we just thought, okay, let's divide it into the, we'll do at least West Coast. Okay, but I'm not that sea person. So we just thought, okay, let's go till Kanyakumari and then we'll see how Abir is doing, how comfortable we are and how comfortable he is. And then we'll decide what to do. Should we go further till West Bengal, or should we come back by Western Ghats and complete Gujarat coast? But then somehow all three of us were very comfortable, and even Abir was very comfortable. So we were, and he was very into, when we were discussing and all the stuff. So he was very much into it, that we will go for this road trip, and I'm very excited. Okay, we'll go to the different places. So this is how actually it had started. Idea of going for a trip. So actually, this is how it started. Yes, there were many small. Sorry, बैठे काश ऐसा कर सके, बस इतना simple है. Poonam makes it sound so simple, बस ऐसे ही हो गया. But I'm sure, of course, I think आप दोनों साथ में थे, तो energies जब होती हैं, and things just happen. थोड़ा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे चीजें चल रही थी as a कोरोना जो आगे पीछे हो रहा था. So we didn't find कि बाबा करेंगे कि नहीं करेंगे. तो one day ऐसे लगा कि and I will again say that Corona was the main influencing factor, जहाँ पे अपने छोटे छोटे ट्रिप्स बहुत कैंसिल होने लग गए. मतलब we used to do that वीकेंड पे जाना है, 4 दिन के लिए गए, हफ्ता भर के लिए, that was the maximum कि कुछ जाके आ गए. But even मैं भी नहीं रहता था, तो पूनम just trying to fill up for me, and जहाँ जहाँ possible होता था. In fact, she been a month in Devgarh during COVID. और मतलब वहां पे गई, अटक गई, वहां पे आने के लिए टाइम लगा. दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट दे बोथ वर सेफ इन अपना रिलेटिव्स प्लेस. सो तो इनफैक्ट इतना कोविड ने हमें रोक के रखा था. सो इट ट्रिगर्ड कि नहीं, अभी तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वी नीड टू प्लान आउट इन सच अ वे दैट कि करेंगे ही करेंगे. एंड अगेन जब भी बाहर the story is building up like that कि हम लोग ने जैसे प्लानिंग करना शुरू किया कि it was just like जो बोलते हैं ना कि शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि आप सिर्फ अपना इच्छा रखो, ये I don't know the dialogue, but सारी कायनात आपके हेल्प के लिए आ जाती है. I'm not a Bollywood kind of a person, but वो कायनात literally it is kind of a every aspect is trying to help us in our friends, my family. अगेन और फ्रेंड्स की फैमिली वहां से तो और 4 जगहों से कनेक्ट होने लगे थे. वी डिडंट नो कि ये कैसे करने वाले हैं, कैसे होगा, बट इतना तय हो गया था तब तक कि नहीं, कुछ तो करना है, जाना है. एंड जैसे पूनम ने कहा कि वी फाइनलाइज्ड अवर कि नहीं, कुछ तो स्ट्रक्चर देंगे उसको. एंड वी फर्स्ट इनिशियली सी द कोस्टल पार्ट. सो बिफोर डूइंग दैट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मे बी ये कोविड है तो विल स्टार्ट विद द रिलेटिव्स फर्स्ट. रिलेटिव्स जाने के बाद विल फोकस ऑन द अदर थिंग. बट आज वी आर प्लानिंग टू अचीव सम काइंड ऑफ लर्निंग इन दिस ट्रिप. सो वी फोकस ऑन फ्यू एस्पेक्ट्स लाइक वी एज आई एम अ नेचर एंथुसियास्ट. तो मैंने बोला था कि नेचर तो पक्का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा मैं पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं हूं तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि नेचर रखना है. सेकेंडली वी ट्राई टू सी कि ज्योग्राफी कैसे चेंज होती है. As we say, India is diverse, but ये सब theory is different. But when we practically actually feel this, तो geography पूरा difficult हो जाता. तो that is the thing. First is nature, then geography, then हमें थोड़ा खाने का भी शौक है, तो food आ गया उसमें.
ट्रेडिशंस कल्चर आ जाता है, लोगों से बात करते हैं, तो सोशल एस्पेक्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सोचते नहीं है, लेकिन इट इट टेक्स पार्ट इन योर सिस्टम. जस्ट अ मोमेंट. सो यस, सॉरी, रुकावट के लिए खेत था. पावर के लिए खेत मत बोलना, अगर वो नहीं होता तो शायद ट्रिप नहीं होती. डेफिनेटली. सो वो सब एस्पेक्ट लेके हम लोग ने सोचा कि हम लोग ट्रिप बिल्ड करेंगे. और आफ्टर लॉन्ग टाइम ख्याल आ दिया लोग. सो आफ्टर प्लानिंग आउट सच ए ट्रिप, तो मैं अपने सपने बुनने शुरू कर दिए था कि मैं ये रिसर्च करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मेरे ये एस्पेक्ट्स रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स रखूंगा. बट फॉर्चुनेटली आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 15 days, जो कुछ भी प्लानिंग करा था हम लोगों ने कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो दैट इज अनस्कूलिंग कर रहा है, रोड स्कूलर्स है. ओके, यस, वी आर ट्राइंग टू डू रोड स्कूलिंग. ओके, सो प्लानिंग तो रहा एक साइड में. We came to know that while doing the unschooling or unstructured travel, planning आप जितना ज्यादा करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाता है. एक मिनट, कुछ तो गिर गया, सॉरी. सो वो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले में हमें पहले ही कुछ हफ्तों में या 15 दिन में ये पता चल गया कि प्लानिंग ज्यादा करके फायदा नहीं है. वी नीड टू फोकस ऑन जो कुछ भी चीजें जैसे कैसे आने वाली उस टाइप में. सो वी स्टार्टेड डूइंग 2 day प्लानिंग. उतना ही करना शुरू कर दिया कि ओके, ज्यादा से ज्यादा हम 2 दिन का प्लान कर पाएंगे, उसके आगे सोचना विल बी डिफिकल्ट. सो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन 2 days एंड वी स्टार्टेड जॉटिंग ऑन द थिंग्स. लेकिन होता कैसे है कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती है कि दिखने के लिए ऐसा होता है कि सब मिल रहा है, बट नहीं, बहुत सारी ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि उतार चढ़ाव आ जाते हैं ट्रैवल में. सो वी फेस्ड आल्सो मेनी थिंग्स. जो प्लान नहीं था, जो प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, वो होता नहीं है. तो जस्ट अशिता, कैन आई होल्ड फॉर 2 minutes, क्योंकि शायद आई नीड टू बी आउटसाइड. जस्ट गिव मी 1 minute. Sure. No worries. Yeah. सॉरी, हेलो. वो साइकिल से खेलते खेलते थोड़ा साइकिल आगे पीछे हो गया और साइकिल को लेके गिर No गया. worries. Sorry, Naku. यस. अशिता, एक्चुअली ना और एक चीज, अगर हम लोग ऐसे बोलते रहेंगे ना, तो हाँ, इट विल बहुत बी लाइक नेवर एंडिंग. सो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर किसी का कुछ भी एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्वेरीज, एनी डाउट्स, या इन जनरल कुछ भी क्वेश्चंस है, तो कैन वी गो लाइक दैट, बिकॉज़ अदरवाइज इट विल बी वेरी vague kind Absolutely. of thing. Ideally, I would just love to sit in here, but however you. but it will be very long, very long. हाँ, first I will complete जो मैं बोल रहा था. I want I'm to so do sorry. that. No, that's after perfect. that we'll go for question and answer or something randomly question जो भी आपको लगे वो, because मतलब मैं थोड़ा बहाव में बहने वाला हूँ. जिसने good है, सुना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाएगा ना. So once like the way you say. हाँ. So that's fine. I forgot where I was, but I think okay, जो प्लानिंग कर रहे थे वो मैं बता रहा था कि 2 दिन से ऊपर नहीं हो पा रहा था. So after that हम लोग ने प्लान करना शुरू कर दिया कि सच में कि बाबा 2 दिन ही प्लान होगा. तो सॉरी, मैं आई एम लॉस्ट राइट नाउ बिकॉज थोड़े इधर उधर की चीजें भी चल रही है. सो ओके, सो इनिशियली वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई. सो एज वी स्टार्टेड अवर जर्नी, वी प्लान कि जितना हो सके उतना कोस्ट के नजदीक रखना है. सो वी स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम भाऊचा धक्का, जहाँ पे अभी नई रोरो सर्विस शुरू हुई है मुंबई से अलीबाग के लिए. सो वहां से नीचे फिर टिल रत्नागिरी, वहां पे सर्विसेज आर अवेलेबल. सो वी स्टार्टेड टेकिंग दैट थिंग. we took all jetties and ferries, और just trust me कि रोड कितने भी खराब हो, our coastal habitat is very beautiful, very offering. In fact, after spending
एंड प्लानिंग इन सच वे कितने जहाँ पे हम रोड कोस्ट के नजदीक रहे, इनफैक्ट जहाँ पे प्लान नहीं था वहां पे भी हमें बहुत सारी अच्छी चीजों का साइटिंग हुआ था. ऑन अ फर्स्ट डे वी साइटेड मॉनिटर लिजर्ड, 10 feet rock python on road, 2 to 3 times jackals on road. So रोड कितने भी आगे पीछे रहते हैं दैट इज सेकेंडरी, बट आई ट्रस्ट मी कि जितना आप मेन रोड या सिटी से दूर रहोगे आपको नेचर में ऑफरिंग्स बहुत होती है. जो तो प्लान नेक्स्ट टाइम कोई भी कभी भी ट्रिप प्लान करो, प्लान इट इन सच ए वे कि यू ट्रैवल ड्यूरिंग डे टाइम, स्टार्ट अर्ली, एंड अर्ली, सो दैट इवनिंग के पहले आप कहीं पे तो रुकना चाहोगे वो आपके नजदीक पहुंच पाओ. सो दैट इज अ पार्ट जहां से हम लोग ने ट्रैवल शुरू किया. हम लोग अभी रत्नागिरी पहुंच गए. रत्नागिरी में हम लोग रत्नागिरी से टिल मैंगलोर we were staying at different places and we didn't spend a money on that because relatives, friends और ऐसे अलग अलग जगह पे हम लोग रह के वहां पे हम लोग का ये स्टे एंड फूड सब अकोमोडेट हो रहा था. तो एक्चुअल जर्नी स्टार्टेड आफ्टर दैट कि जहाँ पे ओके अभी रिलेटिव्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, सो नाउ इज द ओपन जहाँ पे सब चीजें ओपन हो जाती है. एंड वी मेट अ फैमिली, लोबो, Joan, and most of us know them. They are also they are part of unschooling communities and road schooling. उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी करी हुई है. तो वे वहां पे पहुंच गए. तो वहां पे एक्चुअली से लगा कि यस वी हैव, जैसे मैं बोल रहा था कि कायनाक के बारे में, तो कायनाक आके काम करना शुरू कर रही थी. वी ऑल्सो मीट पल्लवी देयर, शी इज ऑल्सो इन ट्राइब. पल्लवी फ्रॉम उडुपी. तो उसने पर्पल स्पेस उसका वहां पे है. वहां पे भी हम लोग जाके मिले. तो इट वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस. तो अभी जस्ट तो वापस भटकोफा यहाँ हुआ, तो बेटर विल कम बैक एंड स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, अदरवाइज मैं कुछ भी बक करता रहूंगा. सो यस. So I think yes, we do have a few questions which are okay. there. And Manu also wants to ask. Hi Rahul. Hi Poonam. Hello. Hi. Yeah, so I clearly remember one of our tribe sessions where you guys had come just before your trip. Yes, just yes, Sunday we actually met. Yes, and it was very exciting to know about the fourth member of your trip. It was not just the three of you. The fourth member was your traveling home, your car. Yes. So it'll be very interesting if you share how did you make that conducive to this trip? What all alterations did you do, and how was your experience? And if you can suggest what else can be done, to a vehicle or whatever. What is the wisdom that you gained from this trip? Yes. So for the so for the car, basically we have Swift, okay, which we are using for past almost 12 to 13 years. Okay, so yes, so first what we thought is ki suppose we didn't plan anything, that we'll be staying in the car only or whatever the thing is, but what we thought is ki suppose in case if we have to stay in the car, then our car we'll just modify it in such a way that we could stay in our car if it needed. Okay, so what we did is as it is only 3 of us were traveling, so जो पीछे वाला कार सीट है हम लोग ने वो कार सीट निकाल दिया. And I do not have any photos to share with you guys right now, but I can share pics afterwards in the group. So हम लोग ने वो कार सीट निकाल दी and then we made a storage over there. Okay, तो उसके ऊपर हम लोग ने एक मतलब स्टोरेज वर we only designed it and we just asked our carpenter to come and he was also very enthused and interested, okay, because he was also okay, let's do it कि मैं भी ये कुछ अलग कर रहा हूँ करके. So actually that guy made our car in only 2 or no, not even 2, one day at a stretch. Okay, so it was like हम लोग ने उसे बताया था कि हमारा बजट ज्यादा नहीं है, but these are the things what we need. तो हम लोग ने पीछे वाला सीट निकाल दिया, वहां पे वी मेड स्टोरेज. जो बैक सीट निकाल दिया था, मतलब जो हम लोग का ये था डिक्की का स्पेस है. सो अभी अबीर था या अदरवाइज भी हम लोग बहुत लंबे जर्नी पे जा रहे थे, तो हम लोग की बेसिक नीड्स क्या थी, तो हम लोग ने वो जस्ट जॉट डाउन करी थी कि अगर हम लोग को कार में ये सारी चीजें लेके ट्रैवल करना है
सो उसमें ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स तो थे, और जो बड़ा स्पेस लगने वाला था वो किचन के लिए लगने वाला था, बिकॉज वी कैरीड छोटा ब्यूटेन का स्टोव, फिर ब्यूटेन के सिलेंडर्स थे, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया था, बट वी कैरीड थोड़ा सा चावल, दाल, फिर कुछ जो आटा वगैरह रहता है, शुगर, सॉल्ट, वो जो बेसिक जो सारी चीजें थी वो सारी कैरी की थी। तो हम लोग ने फिर हम लोग का कार ऐसे डिवाइड किया था कि जो पीछे वाला सीट है, डिक्की वाला, उसमें पूरा किचन का सामान आ जाए, मतलब छोटा कुकर, छोटा सा एक पैन, एक छोटा वेसल, वैसा सब पीछे आ जाए। जो बीच वाला सीट है उसके अंदर हम लोग ने वी जस्ट मैनेज स्पेस इन अ वे कि हम लोग के सारे क्लोथिंग, या तो फिर अभी ऑब्वियसली बीच पे जाना था तो वी कैरीड चेंजिंग टेंट, वी ऑल्सो कैरीड अ टेंट। एंड जैसे कि मौसम का कुछ ये नहीं था, क्योंकि व्हेन वी लेफ्ट, दो इट वाज इन नवंबर, actually till we reached Tamil Nadu it was raining, and then again in Varanasi it started raining, and we actually experienced all three weathers, like it was raining, it was like matlab we got actually sunstroke and all those stuff also, and then there was when we reached UP and all the stuff, there was like winter wahan pe chal raha tha, so we had to carry all those clothing, कि विंटर के भी लेने हैं, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से भी लेने हैं, फिर बारिश आएगी तो छाता लेना है या विंड शीटर लेना है, वैसे सब लेना है। तो हम लोग ने कार में फिर वैसे पीछे जगह कर दिया था। ऊपर एक्चुअली हम लोग ने कैरियर लगाने का पहले सोचा था कि कैरियर लगाए और वहां पे फिर वो जो आता है स्टोरेज वो लगा के ले, लेकिन फिर एक्चुअली आई वाज़न्ट दैट कंफर्टेबल विद दैट आइडिया, क्योंकि मुझे ऐसे था कि अगर हम लोग किसी अननोन जगह पे रहते हैं तो सामान ऊपर रहेगा, एंड देन it will be like attracting unwanted attraction, या ये हो जाएगा। तो हम लोग का ऐसे था कि मिनिमम चीजों के साथ जाना है, और कार में फिर ऐसा हम लोग ने किया। तो ऐसा स्ट्रक्चर किया था कि आगे वाली दोनों सीट अगर कंप्लीट आगे कर देते हैं तो वो जो हम लोग ने प्लाईवुड लगाया था वो पूरा 5 फीट स्ट्रेट हो जाए, तो वी कैन स्लीप इन दैट कार इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वैसा अरेंजमेंट हम लोग ने कार में, वो मॉडिफिकेशन हम लोग ने करके रखा था along with all other things which we had to carry, ऐसे था। तो बेसिकली जैसे पूनम ने बताया, एक लास्ट सेशन था, जब फर्स्ट सेशन था तो किचन था, बीच में कपड़े एंड बाकी रेगुलर रोजमर्रा की चीजें जो लगती है वो था, और डोर्स के साइड में मैंने और एक ऐसे छोटा कंपार्टमेंट करके रखा था जिसमें इमरजेंसी किट्स होते थे। फॉर एग्जांपल टायर अगर पंक्चर हो रहा है या कोई मेडिकल किट की जरूरत लगती है, या इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी, अबीर का एक तो ऐसा खिलौना चाहिए जो उसे एंगेज करके रख सकता, तो वो सब चीजें साइड में होती थी। और वी ऑल्सो यूटिलाइज द स्पेस बिलो, जो आगे की 2 सीट्स है उसके नीचे जो जिस चीजों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम लोग जो छोटा मोटा कलेक्शन करते थे, या टेंट वगैरह है जो इमिडिएटली आपको विदाउट रिमूविंग एनी कंपार्टमेंट यू हैव टू रिमूव, तो रिमूव कर सके, तो वो सब चीजें वहां पे होती थी। एंड जैसे जैसे ट्रैवल आगे बढ़ करते गए तो हमें ये चीजें पता चलने लगी कि ओके ये चीजें ही जरूरी है, ये चीजें जरूरी नहीं है, ओके ये चीजें जरूरी थी लेकिन हम लोग ने ये ली नहीं है। तो वी स्टार्टेड अपग्रेडिंग आवरसेल्फ सो दैट कि और यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस अच्छा हो सके। पहले एक्चुअली 10-15 दिन वो स्ट्रगल, हाँ मतलब मेजर स्ट्रगल था। इट वाज अ मेजर स्ट्रगल बिकॉज़ हम लोग कैसे था कि अच्छा ये चीज है पर ये चीज तो यहाँ पे है तो इसके ऊपर इतनी सारी चीजें, बट ये चीजें हमें लग रही है एक्चुअली कि जैसे किसी के घर पे रह रहे तो वी जस्ट नीड उस दिन के कपड़े, सो वी डोंट मतलब उतना सारा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं है, या ऐसी सारी बहुत सी चीजें हमारे बीच में छोटा सा ये भी था, मतलब ये अपना छोटा फाइट नहीं बोल सकता, बट ऐसे ये हुआ था कि इतने दूध की जरूरत क्या है, ओके ये पॉटी सीट की जरूरत नहीं है, पॉटी सीट हम लोग क्यों कैरी करें, ओके ये कैरियर की जरूरत नहीं है, कैरियर ले लेते हैं क्योंकि हमें ये कर सकते हैं। एक जस्ट मिनट। सो वो बाद में पता चला कि ओके दूध उतना जरूरी ही है क्योंकि हमें हर जगह हर चीज चाहिए तभी नहीं मिलती, क्योंकि 1-2 बार तो ऐसे हुआ था कि रात को 1:30-2 बजे अबीर ने बोला था कि अभी मुझे भूख लगी है, मुझे दूध ही पीना है। सो फॉर्चुनेटली हमारे पास उतना दूध था टेट्रा पैक, सो दैट वी कैन उसके हंगर को कुछ ये कर पाए। सेकेंडली लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी एक्चुअली जो हम लोग ने कैरी की थी, जैसे कि पॉटी सीट, एक्चुअली वो पॉटी सीट मुंबई में भी यूज नहीं करता है बट जस्ट वी थॉट कि हम लोग के पास थी तो हम लोग ने सोचा कि ले चलते हैं, क्योंकि
शायद से वो अनकंफर्टेबल हो जाए, दूसरे की कहीं पे जाना है तो एटलीस्ट ये सीट उसे देखकर तो पता है कि ये मेरी है या मेरे हाँ. घर की है. सो यू नो फॉर हिज कंफर्ट लेवल हम लोग ने वो कैरी की थी. इवन हम लोग का जो बैकपैक कैरियर था वो भी हम लोग ने कैरी किया था कि सोचा था कि सपोज अगर किसी ट्रेल पे गए, ट्रिक पे गए ऐसे. लेकिन फिर 10-15 दिन के बाद भी रियलाइज कि ओके ठीक है ये शायद से हमें नहीं होगी तो भी चल जाएगा. लेकिन अभी जैसे कि 40 सीट है तो वो काफी सारी जगह ले लेती है, स्पेस बहुत ज्यादा लेती है ऐसा. तो फिर लकीली एक्चुअली हम लोग के साथ एक फैमिली ने ज्वाइन किया था. वो लोग हमारे साथ 10 दिन थे, पहले 10-12 दिन. तो फिर वो लोग जाते वक्त हम लोग को वो थोड़ा एक एडवांटेज मिला कि एटलीस्ट ओके ये 10-15 दिन में हमें ये तो पता चला है कि ये चीजें हमें नहीं लगने वाली है फॉर श्योर. तो फिर वैसे कई सारी चीजें हम लोग ने उनके साथ भी भेज दी वापस कि ठीक है विल मैनेज करके ऐसे. हमारी गाड़ी खाली करने के लिए हम लोगों ने लोगों की गाड़ी भर के वापस मुंबई भेज दी. उनके पास वो थोड़ा सा सामान हम लोग ने वापस भेज भी दिया. एंड एक्चुअली मतलब वो भेजने के बाद भी मैं एक्चुअली वो 40 के लोग के लेके बहुत कंसर्न थी कि वो कैसे होगा कि मैंने सीट तो भेज दी अभी क्योंकि एज इट इज उसने 10-15 दिन यूज नहीं की है एंड आई डाउट वो यूज करेगा, लेकिन उसके लिए जगह बहुत लग रही है. बट देन टू माय सरप्राइज मतलब वो हुआ, इजीली हुआ. मतलब एक्चुअली यू नो मतलब जितना सोचा नहीं था उतना आसान हो गया. मतलब हम लोग ने एक्चुअली वी स्टेड एट अ प्लेसेस वेयर जहाँ पे सिर्फ कंपोस्ट टॉयलेट था. मतलब यू नो ड्राई वेस्ट अलग से, वेट मतलब actually you have to pee in a different pot and then you have to poo in a different pot because it was a dry composting. But there also okay for him also actually, he was enjoying that part. So he was okay doing those things. So you know वो सारे जो हमारे दिमाग में रहते हैं ना कि क्या हमारे बच्चे ये कर पाएंगे हम अगर ले भी जा रहे तो वो एक था कि okay I'm just you know I'm worried for no reason. Kids are you know they'll do it. वो कर रहा है, he is getting used to these kind of a things and he is doing it. And that is the best example कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना एक्सपोजर एक ऐसी चीज है जो बच्चों को क्या हम बड़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि अगर एक चीज सीखनी है तो हमें उस चीज को एक्सपोज होना पड़ेगा. अबीर जैसे विदाउट पॉटी सीट था तो जहां जहां उसे अपनी बायोलॉजिकल नीड्स की जरूरत थी, बायोलॉजिकल कॉल्स की जरूरत थी, उसने अपने हिसाब से वो जरूरतें फुलफिल कर दी. Even I can say मतलब we stayed at friends place, we stayed at relatives place, we stayed in ashram, we stayed in mutt, we stayed in a farm. So कहीं पे भी उसको वो दिक्कत नहीं है कि बाबा मैं अभी वॉशरूम कैसे जाऊंगा. वो दिक्कत सिर्फ हमारे मन में ही थी कि अरे ये होने कैसे वाला है, ये कर पाएगा कि नहीं. बट ही वॉज ओके. इवन वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में हम लोग ने ये भी सोचा था कि पेट्रोल पंप्स आर द बेस्ट एग्जांपल. जो बंबई के पेट्रोल पंप के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बट ऑन रोड जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स है दे आर सुपर डुपर क्लीन, हाइजीनिक, प्रॉपरली स्टेरिलाइज. आप जाने के बाद वो फीलिंग आ जाता है कि नहीं दिस इज गुड. That is only in the case of okay Naira and Shell. No. Now, so they were actually there are other petrol pumps also where I personally took Abir for his natural cause. So I can assure you जितनी गंदगी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना उतनी नहीं होती. दे आर वे अच्छी होती है. Still used to carry you know sanitizer, toilet sanitizer, our seat potty seat जो होती है just a foldable one. that so one. Foldable potty seat, फिर you know that sheet to spread on it and a sanitizer because as it is like toilet issues and वो सब होता है so to avoid all this stuff like however clean it was wherever we used to go we used to make sure that we first sanitize it and for him also. Thanks for enlightening here and very encouraging. I think everybody has lots of questions and so I'll not take too much time. I have also lots of questions which I'll ask later. Yes. Just a very small comment / question. Okay. So like, does this encourage you to also an insight, because travel is to you know to make your life more kind of your ideas more sorted in life. क्या इससे ये थोड़ा ख्याल आया कि यार एक्चुअली डे टू डे लाइफ में हमको इतनी चीजों की जरूरत नहीं है जितनी हम नॉर्मली रखते हैं. मिडिल क्लास की बहुत प्रॉब्लम है हम सबकी. हम जितना भी सब घर में मतलब घर होता है सामान भरने के लिए एक्चुअली. Absolutely. As you said, घर होता है सामान भरने के लिए. हमारे लिए वो घर पहले गाड़ी था और गाड़ी भी हम लोग ने फिर खाली करना शुरू कर दिया था. Yes, actually, I'll agree with you because मतलब
अभी अबीर के मतलब एज अ पेरेंट्स है बहुत सारे, तो आई जस्ट मतलब फर्स्ट आई जस्ट टॉक यू नो पेरेंटिंग व्यूज से. सो जब भी हम लोग जा रहे थे तो ऑब्वियसली घर पे तो बच्चों के बहुत सारे टॉयज रहते ही है, एंड यू नो वो सेशन मतलब वो भी काफी लोगों का होता है कि टॉयज की जरूरत उतनी है क्या, कि यू नो इफ वी गिव लॉट ऑफ टॉयज टू आवर किड्स देन यू नो वी मतलब वो थोड़ा उनका क्रिएटिविटी को हम लोग उतना स्कोप नहीं देते, यू आर जस्ट रेडिली गिविंग देम थिंग्स. सो वो मेरे में कॉन्फ्लिक्ट था थोड़ा ऐसा कि ओके ओके ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग. ओके, सो जाते वक्त हम लोग ने अबीर को बोला था कि कार में तो काफी जगह नहीं है, सो यू कैन कैरी ओनली 3 ऑफ योर टॉयज, एनी टॉयज बट यू कैन कैरी ओनली 3. सो उसने तीनों के तीनों कार ही लिए थे. ओके so but एक्चुअली पूरे जर्नी में उसने खुद के क्रिएटिविटी से कार में जितनी भी चीजें थी उससे इतने इतने टॉयज बनाए कि आई हैव एक्चुअली क्लिक्ड ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर ही मेड, बिकॉज उसे शिप्स को वो सब एक्सपोजर बहुत मिला, क्योंकि वी लॉट ऑफ टाइम्स वी ट्रैवल्ड इन रोरो एंड you know we have visited a lot of museums which has warships and then which has submarines and all the stuff. Then he started making, you know, whatever he used to get, like, you know, he used to get that remote or clips or rubber, or I've carried all those chota things. So he used to make, you know, boats out of that, and then he used to make construction toys, cranes and all the stuff. So I definitely felt कि इतना हम लोग जो सोचते हैं ना, अरे ये नहीं होगा तो ये कैसे सीखेगा, अरे इसको इसका मैकेनिज्म कैसे समझेगा, ये कैसे समझेगा. लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि एक्चुअली ही इज कंफर्टेबल प्लेइंग विद व्हाटएवर ही इज गेटिंग. यू नो उसका वो टॉयज का स्पेसिफिक नीड नहीं है जो मुझे ऐसे लगता था कि उसे है, बट वो नहीं है. सो हम लोग बाहर जा रहे तो ऑब्वियसली किड्स प्ले विद जो भी कुछ सैंड्स है, स्टोन्स है, लीव्स है, वो तो खेलते ही है. बट यू नो इवन in any room and you don't get a lot of toys all around, but still he used to manage his own toys and he used to play with it for hours. So I was like, okay, so this is definitely. और जैसे कि पॉटी सीट का भी वैसे ही था कि we just thought, you know, we just need it, maybe he not be comfortable, but then he was very much comfortable. Even for clothes, you know, हम लोग ऐसे I was just thinking कि ये तो 2 दिन का पिकनिक के लिए थे तो भी इतना सामान लेके जाते हैं हम लोग, इतने दिन के लिए जा रहे हैं फिर भी स्पेस ही नहीं था ना. स्पेस है और बाकी सारी चीजों के लिए तो लेने ही थे, तो हम लोग ने सोचा कि ऑप्शन ही नहीं है अपने पास कैरी करने का. सो वी एक्चुअली कैरीड इन लिटरली 4 sets of clothes, like अबीर के छोड़ के, cause वो बहुत खेलता है, बहुत ज्यादा कपड़े खराब हो जाते हैं ऐसे. And I thought, yeah, it is very much doable. मतलब you actually don't need that much of जो मतलब क्या बोलते हैं हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जो चीजें जरूरी है वो इतनी नहीं थी एक्चुअली. That's true. That's very true because as he says, और क्या होता है आजकल anyway कोविड टाइम्स में सेल ज्यादा लगती हैं, so temptation वैसे ही ज्यादा होते हैं और ऑनलाइन और भी ज्यादा. So but yeah, that's also a silver lining of COVID. क्योंकि 2 साल हम घर में रहे हैं तो हमें पता है कि इतनी जरूरत ही नहीं है, बट हमारे वार्डरोब्स भरे हुए हैं. So yes, and definitely travel kind of you know helps us look through that, you know, understand better होता है जब आप practically कर रहे होते हैं. So guys, I know there are a lot of questions, but is it okay if you can come online and ask them the question instead of them reading the question and answering? तो आप लोग वीडियो चाहे ऑन करें तो अच्छा रहेगा. We also get to see you. Yes. So you can, you know, just come online and ask them. Gauri, Archana, Asmita, Sorvi, hey, question. I wanted to ask something. Sure. So my network is very unstable. Hi. Okay. So I'm not putting my video on. Okay. And I don't even know this got covered or not. So let me know. फिर मैं recording में देखूंगी मेरा question cover हो गया तो. I wanted to know, firstly, how did you break this, choice of yours open to Abir? तो कुछ प्लान था कि उसे बताएंगे और उसका रिएक्शंस जानेंगे कि हम कर रहे हैं तो by default you have to come along with us. So was he a part of all the planning या जो भी
ड्रीम्स, यू नो, बच्चों के कैसे फैसिनेटिंग ड्रीम्स होते हैं, अच्छा हम ऐसे जा रहे हैं, हम इतने दिन यहाँ जा रहे हैं और कार में जा रहे हैं. सो वो कुछ स्टोरीज मैं जानना चाहती हूँ फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. Yes. Yes. So, actually, Abir was very much interested in this, and he was very much involved in all our conversations. Okay, so right from choosing a name to Alo Bello Yes. stories to everything, like whatever things we shop for our road trip. I And think even you should tell that story about selecting the name of selecting Alo the Bello. name also. So we actually just thought, okay, let's name this venture something, and then we actually asked him to join in our conversation, and we just asked him, so what should we call it? We are going for a road trip and all that stuff. So he's like, okay, let's call it Alo Ballo. So okay, so we just asked him, okay, what does it mean? So he doesn't have any specific meaning to it, but he was very much persistent to it, that no, matlab, we just kept on asking him for almost 15-20 days, and he was consistent. No, we'll keep it as Alo Ballo, keep it as Alo Ballo. So then we were like, okay, as it is. So major focus is on him. We are doing it as a, like, you know, learning trip. So why not call this thing with the same name? So we actually kept the name which he had suggested. Even when, you know, before planning and all the stuff, we got India's map, and then we used to sit and we used to see, okay, how many kilometers, you know, just to get a rough idea about what are we planning. So he was very much involved in that, and he was all into, actually. He used to, you know, he used to say that, you know, whoever he used to meet, he used to tell people, okay, we are going on a car trip and road trip. And but still we were worried, because okay, so now he I don't know, he was actually into about this trip, but we didn't know, okay, you know, the same level of enthusiasm will be continued for next few days or months, or it will just fade away. But luckily he was, matlab, till the time we reached Mumbai, he was still, what thing he has on his mind was, okay, we'll go to Mumbai, we'll race for a few days, and then we'll again start our road trip. So he is that much interested in traveling and roaming all around. इन होल ट्रिप एक 2 टाइम उसका ऐसे हुआ था कि उसने घर की यादें निकाली थी. आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट कि वन ड्यूरिंग व्हेन वी वर इन गोवा, जब भी उसका एक दोस्त हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था, एंड वो फैमिली वापस घर जा रही थी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ही फेल्ट कि नहीं, मुझे भी उसके साथ वापस जाना. एंड उसके बाद इन ड्यूरिंग पौंडीचेरी चेन्नई रोड, उसने अपने घर पे जो उसका एक ऑयल टैंकर है, तो ऑयल टैंकर, उसे सेम ऑयल टैंकर रोड पे दिखा कि ओके, ये मेरे पास ये ऑयल टैंकर था, मुझे ये ऑयल टैंकर चाहिए, नाउ विल गो टू मुंबई, विल टेक दैट ऑयल टैंकर एंड विल कम बैक एंड स्टार्ट आवर रोड. तो ऐसे हो गया कि नहीं, विल ट्राई टू सी कि यहाँ कहाँ मिलता है क्या, क्योंकि वो ऑयल टैंकर वहां पे जाना विल बी मोर डिफिकल्ट. एंड दैट इज द ओनली 2 इंसिडेंट्स जहाँ पे उसने मेंशन किया कि मुझे घर जाना है, नॉट बिकॉज ऑफ उसको अलग पर्सपेक्टिव, जस्ट बिकॉज वन his friend was living, and second वो ऑयल ट्रैक उसके पर्टिकुलर खिलौने को मिस कर रहा था. तो दैट इज द टू वे. एंड as Poonam said, we will जनरली आज भी छोटे से छोटे चीज में हम लोग वी ट्राई टू सी कि वो बैठे साथ में, या वो सामने बैठा हुआ होगा, तो हम लोग वो डिस्कशन उसके सामने करते हैं. In fact, I discuss my financials in front of him only. Ki Baba, and he is very much interested. If we just tell him now, Abir, just come here, we just have a very important discussion. It's a call. It's a meeting call. Okay, it's a meeting. So he'll come running. Like, whatever inputs he has to give, no, that is another, or like, you know, whether it may be all those topics are not for his age, maybe, but then he comes running. Okay, there is a meeting, I'll come, I'll discuss. So he actually loved being part of it. Part of meeting, part of travel. Because हम लोग का वही decide था, as I've told earlier, कि अगर मतलब ऐसा हम लोग ने डिसाइड किया है, तो इट वाजंट लाइक कि हम लोग ने डिसाइड किया तो हम लोग ये करना ही है और हम लोग को इतना करना ही है. What we had decided when we started was कि we are starting it, let's मतलब okay, this is a rough map of what we will be doing, but we will be doing it unless and until 3 of us are comfortable with this journey. If any one of us is not comfortable with this journey, then we'll we'll again come back home, and then we'll start something else
or we'll complete it after a few months or things फर्स्ट like इट that. वाज घर छोड़ना So है, that was बाहर a जाके fact घूमना है, basically. सेकंड वाज कहीं पे नेचर में जाना है, थर्ड वाज कहीं पे सेफ जगह जाना है. उसके बाद तय होना शुरू हो गया कि नहीं, विल फोकस ऑन द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट. तो अर्लियर इट वाज लाइक कि पूनम इज अ माउंटेन पर्सन, तो उसने बताया कि बेटर हम लोग नीचे जाएंगे, कन्याकुमारी से वेस्टर्न घाट से ऊपर आएंगे टिल द गुजरात, गुजरात से लेके विल कवर द एंटायर कोस्ट ऑफ गुजरात, सॉरी वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. सो हम लोग ने ये सब डिस्कशन होने के बाद मैंने कहा ये भी अच्छा प्लान है. मेरा तो ऐसा हो रहा था कि कुछ क्या क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था. तो वी डिसाइडेड फाइनली कि ओके कन्याकुमारी जाके एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, एज वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज एनीथिंग हियर. सो कन्याकुमारी जाने के बाद डिस्कस हुआ कि चलो फाइनली वी क्रॉस्ड केरला, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ओमिक्रॉन वाज ऑन हाई ऑन मीडिया. on Kerala तो was केरला क्रॉस करना हमारे लिए एक टाइप ऑफ मतलब बहुत सी बड़ी जीत हो गई थी. वी क्रॉस केरला, चलो इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, वी मूव अहेड, विल गो टू कवर द ईस्ट कोस्ट आल्सो. तो वो थोड़ा एड्रेनलिन बूस्ट हो गया था. हाँ. So but basically that we had decided कि ठीक है, मतलब वो अगर comfortable feel नहीं करता था तो we wouldn't have done, we would have come back. Hi, So I वो have a already था. question. This is Leena from Mumbai. Hi, So, Leena. is it okay? Yeah. Yeah. So, I guess- how? What was your actual route for the whole trip, and how did you manage the finances? Basically, so now if you had to book, say, 2 places, so did you do 2 days in advance, like you told them that we are coming, or how did you plan that? No, see, basically we were tight on budget, okay? So it Very wasn't, tight. yeah, so it was difficult for us as well, you know, to manage all the finances and all the stuff. Route, what we just stick to one rule for our entire route, that we will travel as close as sea. ओके. सो हम लोग ने ऐसा कुछ मतलब वी जस्ट न्यू कि ओके हम लोग को ये रूट से जाना है, बट वी डिडंट नो कि हम लोग कि यहाँ से जाके हम लोग 2 दिन में यहीं पे रुकना है. मैक्स टू मैक्स जब भी हम लोग डिसाइड करते थे वी यूज्ड टू फिक्स फॉर नेक्स्ट डे और मैक्स टू मैक्स फॉर 2 days. ओके. बट हम लोग ने ये पूरे ट्रिप में कहीं पे भी प्री बुकिंग नहीं किया था कि So how would you go with the stay? Like अभी सपोज कल रात कहाँ स्टे करना है, तो आप मतलब ऑनलाइन सर्च करके रखते थे कि आज यहाँ पे स्टे करना है, या बस आज यहाँ पहुंच गए और जस्ट लुक अराउंड फॉर द स्टे एंड देन यू स्टेड देयर? हाउ वाज इट? हाँ, sometimes when see if we know that we are staying in, suppose our halt was at Chennai, so obviously you know that you'll get a lot of places to stay. So in that case we don't used to book even before a night. We just used to go, we used to check out the places if we are comfortable with the places and price. Or sometimes what happens is booking पे वो लोग ज्यादा बताते थे, when we used to go and bargain with them तो rate और कम हो जाता था. But the places where we when we went to Digha, or when we went to I guess Machilipatnam, so there were not a lot of options were available वो to प्लेस stay. एक्चुअली टूरिस्ट उतने है नहीं, तो वहां पे थोड़े प्लानिंग की जरूरत हाँ, पड़ तो रही वहां पे ऐसा था कि लेकिन वो भी हम लोग ने ज्यादा नहीं, ऐसे मैक्स टू मैक्स 1 day before, बट जाने से पहले we booked that place and then we went. And during COVID, did you have problems crossing state borders? Like, did they have checkings and did they stop you anywhere, or you had any difficulties? See, when we actually there was only twice we got checked. One at Karnataka border, but they were मतलब we just showed them nothing else. certificates, 2 doses, 2 like That's it. That's it. Yes, in Gujarat वहाँ पे और ज्यादा checking हुआ because we came from Abu. Different reason is the there. reason was Gujarat is a different. dry state, so while if you are coming from the which route, that Abu road से अगर आप आ रहे हो तो वहां से बहुत ज्यादा ड्रग्स एंड लीकर शायद वहां पे आ जाता है. तो दैट इज अ फैक्ट. वहां पे दे टेक देयर ओन ड्यूटी, दे डू देयर ओन ड्यूटी कि आपको चेक करना है. सो वहां पे एक चेकिंग हुआ, वहां पे चेकिंग हुआ, वहां पे हम लोग का चेकिंग हुआ, वहां पे दे चेक मतलब हम लोग का पूरा कार का एक बैग ओपन करके दे चेक. वहां पे मैं ऐसे बोलूंगा कि हम लोग ऐसे दिख रहे थे कि वी आर जस्ट लाइक हिप्पीज, कि बाबा ये बच्चे को लेके घूम रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा. तो दैट काइंड ऑफ, तो हाँ, मतलब गुजरात में इट वाज लाइक दे एक्चुअली ओपन एवरी बैग ऑफ आवर्स एंड दे चेक्ड इट व्हेन वी एंटर्ड. व्हाइल चेकिंग मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था, बट बाद में मुझे पता चला कि दैट इज द एक्चुअल रूट जहां से चोरी छुपे बहुत सारी चीजें होती है. तो आई वाज ओके कि ओके ठीक है,
actually policemen is doing their duty, so that is okay. The That is doing okay, duty but is ऐसा कुछ everywhere. कहीं हाँ. पे भी ऐसा प्रॉब्लम परेशानी नहीं हुई। नहीं नहीं कहीं भी परेशानी नहीं हुई कि कोविड, मतलब हम लोग को भी लगा था यार ऐसा कोई इस पे ना पूछे कोविड सिचुएशन में आप इतने Correct, सारे exactly. स्टेट करके कहाँ पे घूम रहे हो करके. And the last question, did Yes. you all ever sleep in the car? for We 2 just hours. slept for 2 hours. Okay, we actually didn't slept in our car. We just happened to sleep in our car With the for only entire 2 trip? hours. हाँ, Yes, in the actually- entire trip. वो स्टार्टिंग ऐसे हो गई थी, मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि गोकर्ण में वी वर ट्राइंग कि नहीं हम लोग सोएंगे, बट द क्राइटेरिया वाज पेट्रोल पंप मेन हाईवे पे होना चाहिए. सेकेंड थिंग, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुला हुआ होना चाहिए, और वहां पर जाने के बाद मुझे लगना चाहिए कि ओके हम लोग यहाँ पे सो सकते. तो पहले 2 क्राइटेरिया तो ऑनलाइन पे मार्क थे, ओके ये कंपनी ऑपरेटेड है एंड दिस इज ओपन फॉर 24 आवर्स. बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि वो हाईवे पे नहीं था, इट वाज इनसाइड द गोकर्ण जो बीच साइड है वहां पे. सेकेंड थिंग, 9:30-10 बजे के बाद मैंने देखा कि ये बंदे पैकअप करना शुरू कर रहे हैं, तो मतलब मे बी मुझे डर लगने लगा कि अगर ये 24 घंटे नहीं अगर रुक रहे हैं कोई, तो बेटर के move towards the city rather yes, than move towards the city and staying spend on somewhere the else. So highway. we spend night in a nearby house, क्या बोलता था, homestay में हम लोग रुके थे. And वो एक where point the था. homestay is easily available online, like do you have an app but you check through Homeways? अगर प्लेस टूरिस्टी है ना तो ऑप्शंस बहुत है, बट प्लेसेस लाइक मछलीपट्टनम जहाँ पे मतलब हम लोग ट्रांजिट में है और हमें रात बितानी है, तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हार्डली मतलब मछलीपट्टनम में इट्स अ फिशिंग विलेज काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे हार्डली 1 या 2 ही होटल है. और जो हम लोग रोड पे चेक कर रहे थे, तो ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, रश बहुत थी, भीड़ बहुत थी, और मेनी होटल्स वेर फुल. तो जो मिला अच्छा लगा, हाइजीन की एंड सेफ्टी की ओर से वी बुक्ड इट. एंड as you asked for stay, so we stayed in a different places, not only in hotels. Entire trip में हम लोग का होटल का पार्ट शायद ही 20-25% होगा, not more than that. And actually हम लोग का ऐसे हुआ कि और एक रीजन था, मतलब कार का जिस दिन हम लोग ने ट्राई किया वो टाइम पे तो हम लोग नहीं कर पाए, and then afterwards all night curfew and all that stuff had started. Yes. Correct. फिर वो टाइम पे एक तो लैंग्वेज इशू था, ऊपर से नाइट कर्फ्यू, मतलब कहीं पे कुछ फिर इशू नहीं हो जाए करके वी एक्चुअली अवॉइडेड दैट देन आफ्टरवर्ड्स. क्योंकि और पहले ऐसे था कर्नाटक तक तो हम लोग का कि महाराष्ट्र में कोकण में सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स थे, ऐसे था इवन इन गोवा, इवन इन हाफ ऑफ द कर्नाटका में हम लोग के फ्रेंड्स फैमिली थे. तो वो हो गया. एंड जहाँ पे अगर मुझे बहुत ही कुछ इशू हुआ तो आई जस्ट put it on FB that I need a help for this place, and then people they're very supportive of friends. Correct. So they called me up, they arranged stays for me, or like उनके friends के friends ने arrange कर दिया. So ऐसे भी काफी सारे through ऐसे कि आप यहाँ पे जाओ, he is also a traveler and that person will be okay. Or when I think I want to give the last question because I want everybody else to also take a chance. So if you don't mind, just to split the finances, like say car का आपका कितना हुआ होगा, या overall, because 75 days and travel on road, so yes. What is the finance generally I'm looking at, if you don't mind? No, that's okay. So I guess like car से कितना 7 because tolls, see there are so many things, like car changes and जाने से पहले बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें, as we all are traveler, जो travelers यहाँ पे सबको पता ही होगा कि कार का बेसिकली आपको सब चीजें चेक करके सब चीजें अपडेट करनी जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग टर्म, टायर्स भी उतने ही जरूरी हो जाते हैं. तो छोटी छोटी बहुत चीजें मैंने चेंज करी थी. टायर्स चेंज किए थे, ऑयल वो सर्विसिंग में जो होता है वो सब आ ही जाता है. सब माई कार इज लिटिल ओल्ड, सो आई टुक मोर प्रिकॉशन, और थोड़े क्लच का वगैरह भी मैंने काम करवा के लिया था. आई चेंज 2 टायर्स इन दैट. सो अप्रोक्सीमेटली कार ओनली प्रिपरेशन में विद, और वो भी अपना जो फर्नीचर मैंने बनवाया, अगर वो सब मिला के पकड़ने जाए तो 30-40 हम लोग का टोटल बेसिकली जो खर्चा हुआ वो अराउंड 2 लाख अराउंड 2 लाख, जिसमें हम लोग का पूरा मतलब हम लोग का कार, टोल्स, जहाँ पे भी हम लोग रहे, ऑल द शॉपिंग व्हाट वी डिड, कि ऑन द वे जहाँ पे अगर कुछ चीजें ली है थोड़ी बहुत तो उसका, तो हाँ ऐसा पकड़ के हम लोग का अराउंड 2 लाख तक गया. उसमें से पेट्रोल का अराउंड आई गेस, yes we know the petrol charges, पेट्रोल का ऑनलाइन चार्जेस हो जाते हैं. यस, तो वो ऑलमोस्ट पेट्रोल एंड टोल का ऑलमोस्ट 60 to 65 तक था.
60-65 तक पेट्रोल का गया था for 12,000 किलोमीटर हाँ 12,000 किलोमीटर्स एंड बीच में जैसे कि हम लोग का कार का बैटरी चेंज करना पड़ा, सो दैट वाज अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव था. उसके बाद all I understand is 12,000 kilometers was your entire trip. yes. And what was the, like, if you on an India map, say from you start from Mumbai and then down Kerala and So then we you went to from west? Mumbai to Kanyakumari to West Bengal, Bakhol करके एक जगह है, वहां तक गए. Then वहां से हम लोग ने क्रॉस कंट्री किया, मतलब we crossed all that MP, UP, Bihar, Jharkhand and all the stuff, and we reached Lakhpat. We reached Gujarat basically. And then from Gujarat, Lakhpat से जो कोस्ट, मतलब आगे से थोड़ा नरारा पोशित्रा से जो कोस्ट लाइन स्टार्ट होता है, so वहां से लेके we reached Mumbai. Oh, so it was purely the coastline, like it was just the Yes. coastal border, if I have to say. Oh, amazing. Yes. Oh, good to talk. Thank you. Thank you. Same here. Thank you. Anyone else? Great. Yeah, please go ahead. Yeah, I mean, we would appreciate if questions are taken verbally. Otherwise, of course, we can read the questions. But yeah, go ahead. Just one thing, that if we come back to unschooling, Rahul and Poonam, आप अभी तक जो अबीर ट्राइब को जानता था, ठीक है, ट्राइब में फ्रेंड्स मिलते थे एंड ही न्यू कि वो लोग भी अनस्कूलर्स है, यू नो, और लोकली मुंबई में मिल रहे थे. बट मीटिंग अनस्कूलर्स ऑन योर जर्नी एंड स्टेइंग विद देम, लाइक पल्लवी, I don't know many more, but Pallavi को I know her personally, इसलिए उसका नाम शायद निकला. So meeting unschoolers and he seeing कि अच्छा इस तरह से काफी लोग हैं जो रह रहे हैं, you know, in alternate methods. So वो experiences कैसे रहे meeting other unschoolers? Actually for him ना अभी तक उसको वो schooling का concept इतना पता ही नहीं है. So मतलब वो पर्सपेक्टिव से मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगी आपको कि उसे दूसरे अनस्कूलर्स को मिलके कैसे पता चला, क्योंकि अभी एक्चुअली उसकी एक कजिन है who will start going to school and all the stuff. So अभी तक उसे ये चीजें पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बट अगर आपने उससे पूछा तो he might say कि ओके मैं अनस्कूल कर रहा हूँ या ऐसे, मतलब he randomly say that thing. 2-3 बार हुआ है उसने वही जवाब दिया, मतलब, कि आपका स्कूल कौन से, मैं अनस्कूलर हूँ ऐसे वो बोल देता है. बट क्योंकि अभी ट्रिप पे थे तो काफी, मतलब बच्चों से तो हर कोई जो रहता है, जस्ट यू नो टू ब्रेक दैट आइस, एवरीवन आस्क लाइक व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू स्टडीइंग एंड ऑल द स्टफ. सो आई जस्ट हर्ड सेइंग हिम यू नो टू 2-3 पीपल लाइक ओके आई एम अनस्कूलिंग, मी अनस्कूलिंग करतोय असं. पण बट आई डोंट थिंक सो कि जो पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हो वो पर्सपेक्टिव से उसका कुछ थॉट प्रोसेस अगर रहेगा तो, मतलब I even meant you people meeting other unschoolers but beyond Mumbai, you know, and staying some time with them. एक्चुअली हम लोग है ना सिर्फ जुएन के फैमिली के साथ ऐसे रहे जहाँ पे एक्चुअली वो अनस्कूलिंग कर रहे हैं. सो 3-4 days जो जुएन के घर पे रहे, वहाँ पल्लवी से हम लोग मिले, बट वी डिडंट एक्चुअली गॉट यू नो लॉट ऑफ अ टाइम टू स्पेंड टुगेदर. बट आई कैन, मतलब वो उनका जो अपब्रिंगिंग नहीं बोल सकते, बट द थिंग्स वो बच्चे कर सकते थे वो देख के मुझे ऐसे लगता था अरे ये तो मुझे भी नहीं आता है. मतलब जैसे उनका दिन शुरू होता था ना, उनका ऐसा सब सॉर्टेड था. ओके अभी सुबह हो गई है, इन देयर हाउस इट इज फिक्स दैट यू नो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज ओनली फ्रूट्स. तो वो लोग आराम से, मतलब वही चीज में वो लोग ऐसे चले जाते हैं. एंड यू नो उनको पता था कि घर में उन लोग को क्या क्या चीजें करनी है. अच्छा ये मशीन बिगड़ गई है, देन he was very much into, that kid was very much into it, you know, technicality कि इसे ये करना है. Then the Alina, she's I guess 7 or 8 years old, so she was making some powder, okay, from some stone. But then what was amazing is, so she was making it and she was telling me, okay, I'm gonna sell it. And then in that 2-3 days actually she made that powder, and you know with the help of her mother she just counted, okay, so now I'll just split it in 50 grams or 100 grams and whatever it is. Then she decided the cost of it. Then she asked her mother to, you know, spread a word in her WhatsApp group so that she can sell all those products. So it was, you know, मतलब it was amazing to look at those kids, because obviously अभी अबीर तो छोटा है, तो जिनके बच्चे बड़े हैं ना, तो उनका एक्सपीरियंस देखना वो एक अलग ही चीज होता है कि ओके कि how they are growing up, and they are very much, they were
वेरी मच कंफर्टेबल कि मतलब हम लोग जैसे कि उनके घर पे गए तो लैंग्वेज अलग था, बट वो लोग हमसे पूछते थे तो मराठी में इसे क्या बोलते हैं, मतलब they were very keen to learn all those things, you know, different languages, and they were also very welcoming कि नहीं गेस्ट आ रहे हैं हम लोग के घर पे कोई, तो वो बच्चों से भी खेलना है, एंड मतलब अभी छोटा था तो वो लोग उससे बहुत सारा प्यार भी करते थे कि अच्छा ये ले लो, अच्छा ये नहीं पसंद आ रहा है ये ले लो, फिर उनके साथ स्विमिंग पे गए तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आए हैं तो उनको पूरा जगह दिखाना है, एंड एक्चुअली वो एक एक्सपीरियंस था. एंड एक्चुअली सेकंड टाइम आल्सो आई एक्चुअली मिस्ड, we stayed in Tapovan Ashram, Swaraj University का. So there we stayed with one unschooling family जिनके 2 बच्चे हैं, I guess one was 13 years old and one was 6-year-old. So वो लोग स्वराज में ही for this year they'll be staying in Tapovan Ashram. तो उनसे मिलना मतलब वो उनके बारे में बोलना चाहे तो it will take an hour मोनाली, क्योंकि मतलब काफी चीजें थी जो हमने उनसे मराठी में एक सीखी. टर्म है, हम लोग उसे बोलते हैं अवलिया, मतलब ही इज डिफरेंट, मतलब डिफरेंट प्लैनेट. एंड उनके बच्चे मतलब तभी मैंने अबीर को देखा क्योंकि वो टाइम पे वो लोग परमाकल्चर पे काम कर रहे थे. सो वी यूज्ड टू मेक बेड, मतलब अपना एग्रीकल्चर के लिए जो बेड्स बना रहे थे, सीडिंग कर रहे थे, तो अबीर भी वो नहीं हॉर्स का पॉटी लेके पूरा उस पे भी स्प्रेड कर रहा था. तो मतलब ये था कि हम लोग अगर ऐसे नहीं बताते हैं ना कि ये पॉटी है इसका क्या मतलब, जो हम लोग के एक्सप्रेशन है ना उनसे वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं. So we were cool about it. Those kids were cool about it. So उसे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ये पॉटी है तो उसमें क्या खेलना है ये सब. So he was also doing that. Our perspective कि हम लोग उसे पॉटी बोलते हैं. जब हम पॉटी बोलते हैं तभी हमारे दिमाग में वो आ जाता है कि ये भी पॉटी है. But yeah, it was. But when you consider it as a manure, it is altogether different nutritional values. So वो पर्सपेक्टिव है जो हम डाल सकते हैं, और वो कभी कभी ऐसे जो होता है कि डालने के बजाय अगर वो बच्चा सामने किसी को देख के वो चीजें फॉलो कर रहा है तो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज न्यूट्रिशनल फॉर अ पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म. प्लांट के लिए ये जरूरी है तो वो खुद ही शुरू कर देता. तो एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि बिफोर दैट डे जब जहाँ पे ये पर्माकल्चर का सेशन हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके एक दिन पहले उसके पैर में वहाँ पे गांडो बावर करके एक पेड़ है, उसका कांटा लग गया था अबीर के पैरों पे, एंड द कांटा वाज एक्चुअली inch long inside his leg. So it was paining him tremendously. But अगर वो हम लोग के साथ रहता तो शायद वो बोलता कि नहीं दुख रहा है, ये कर रहा है. लेकिन जब भी सामने बच्चे वहां पे एनी कंडीशन में खेल रहे हैं, वहां पे इन्वॉल्व है, तो ऐसे लंगड़ की मतलब वो थोड़ा पैर को एडजस्ट करके क्यों ना हो, लेकिन वो वहां पे था. He was trying to overcome his pain for that kind of exposure. So I like that thing कि जब भी ऐसे बच्चों के साथ अगर मतलब अनस्कूलर्स हम लोग की बात करें तो अनस्कूलिंग इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोग ये चीजें नहीं ज्यादा फोकस करते कि जो एक्सपोजर है वी फोकस मोर देन एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स. तो वो एक था. एंड yes, so Monali basically na more than meeting unschooling kids, I'll say it meeting other kids. You know, who are from different backgrounds, who are from who have a different languages, who have different way of living life. So that was more enriching. We even meet a family. I just cannot divide it in that part. We even meet a family in Jamnagar जिनके बच्चे proper applied courses कर रहे हैं, and just because of COVID they are staying at Jamnagar. Actually उनका courses conduct हो रहे अहमदाबाद, and they were staying at Jamnagar. तो we were lucky enough कि हम लोग उनके साथ थोड़ा टाइम बिता पाए. But वो अप्लाइड कोर्सेस में भी एक फैशन डिजाइनिंग है, सेकंड वन इज मैनेजमेंट कोर्स को ही तो कर रही है, बट उन दोनों को एग्रीकल्चर के बारे में सब पता है. मतलब इवन छोटी छोटी चीजें हैं. हम लोग शाम को बैठे थे चाय पीते वक्त, तभी एक बंदा आया था जो एग्रीकल्चरल गुड्स, उनका मीटिंग कुछ तय हुआ था. आई डोंट नो द एग्जैक्ट मोटो ऑफ दैट मीटिंग, बट जो डिस्कशन चल रहा था तो हम लोग सेंस कर पा रहे थे. दे वर कॉलेज गोइंग बट दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर सराउंडिंग फार्म लाइक. हाँ, तो दैट इज अ ग्रेट एक्सपोजर कि ऐसी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है. हाँ, जो हमें शायद सिटीज में कम. थोड़ा कम होती है. ये मतलब सिटीज में हम लोग तो घर पे भी नहीं करते, अरे स्कूल है कॉलेज है हम लोग को टाइम नहीं है ऐसा सब. बट वहां पे वो लोग कॉलेज आके भी अभी घर पे थे तो दे वर एक्चुअली डूइंग एवरी वर्क एट फार्म. तो हाँ, मतलब इन जनरली बच्चों को मिलना वाज अलग अलग बच्चों को मिलना काफी ये था. अलग अलग लोगों को मतलब पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है. तो इन बन्नी में एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग रह रहे थे कि रिसर्चर्स के साथ,
तो वो अलग एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस, उनका एज अ लाइफ को देखने का नजरिया बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि वो अलग प्रोफेशन में है जहाँ पे वो वहाँ के लोगों के सोशल एस्पेक्ट्स, लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, बट वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वो जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे हम लोग को एक नजरिया मिल जाता है लाइफ को जीने का या लाइफ की ओर देखने का। तो इन दैट पर्सपेक्टिव, यस, एज यू सेड कि अनस्किलिंग और डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट अलग अलग लोगों से मिलने के बाद वो अच्छा हम लोग आत्मसात करतो म्हणजे हम लोग वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं चीजें। यस, तो आई थिंक वही पर्सपेक्टिव अबीर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कुछ इंफॉर्मेशन और डेटा, बट मॉरल्स तो शायद एब्जॉर्ब पक्का हुए है। Right. I think, Asmita, since we're talking about kids, Asmita, you also kind of had a question. Would you like to ask personally, or shall we just read if you're around, Asmita? Okay. Are you there? Okay. Priya also has a question. So Priya, you can come online and ask a question. Hey, I'm so sorry, Asmita here. Oh, sorry, Asmita. Hi, Right, love you guys. Yeah, Rahul, Poonam, how are you? Yeah, the question is, I mean, any challenges that you guys faced, especially with a toddler like Abir around, since you were on road for 75 days, any issues or any challenges that you faced? Yes. So challenges like Abir wise, जैसे कि what happened is, मतलब there were थोड़ा चीजें हुई when we were in Konkan, उसे बाइल आया था पूरे बॉडी पे एक दिन, पित्त जो बोलते हैं ना, we call it as पित्त in मराठी, तो उससे वो पूरे बॉडी पे आया था and we were like worried कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, बट गांव में है तो गांव के जो है वो तो हो ही जाता है, तो उन्होंने काफी हेल्प की हमें, ये मतलब दवाई लाके दी, आप ये लगाओ। इवन एक्चुअली जो हम लोग के डॉक्टर्स है, तो आई एक्चुअली कॉल्ड माय डॉक्टर एंड आस्क्ड कि क्या करना है, तो उन्होंने बोला वैसे वैसे किया। सो दैट वाज वन डे की जब भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। देन अगेन वापस एक बार प्रॉब्लम हुआ व्हेन वी वर इन कर्नाटका, वी वेंट टू सेंट मेरीज आइलैंड, और हम लोग सुबह गए, शाम को आए, फिर अबीर को बुखार एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। ओके, सो आई गॉट लिटिल पैनिक, क्योंकि अभी कर्नाटका में है, ऊपर से अभी टिल द टाइम वी रीच इन कर्नाटका और उडुपी, वो सब ओमिक्रॉन और वो सब का चीजें शुरुआत हुई थी, मतलब तभी। एंड आई वाज वरीड कि अभी यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, उसे थोड़ा बुखार है, उल्टियाँ हो रही है, तो सीधा कोविड के लिए ही नहीं हम लोग को टेस्ट करवाने भेजे, मतलब वो सारे ख्याल आने लगे कि क्या करें, उसे दवाई दूं या नहीं दूं, क्या करूं। एंड एक्चुअली नेक्स्ट डे वी हैड प्लान टू ऑन द सेम डे we had planned to go to Juan's place, तो हम लोग ने वो डिसाइड, तो we were very worried कि अभी कैसे करेंगे। So Rahul was like, okay, let me at least just call Juan and ask her कि this is the situation, because it was not only about Abir, but it was about their kids also, because you know कि अगर उसे कुछ infection हुआ तो ऐसा नहीं कि उनको भी होना, मतलब पास ऑन नहीं होना चाहिए। So we just asked Juan, and actually I'm very thankful to her, because she was still very welcoming and warm. She was like, it's okay, we are just open to all sort of things. No, I remember the word she said कि वो घर पे आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, आप उसको घर पे लेके आओ, don't stay at hotel, just come and bring him home. वो धर्मशाला में थे, तो she was like कि नहीं, आप उसे लेके आओ, हम लोग को कोई तकलीफ, बट हम लोग को ही डर लग रहा था, क्योंकि मतलब उन लोग को कुछ तकलीफ ना हो इसके लिए, बट फिर भी उन्होंने नहीं कि आप आओ करके। एंड एक्चुअली हम लोग उनके घर पे गए, एंड मतलब उन्होंने इतना ये अश्योर किया ना हम लोग को, क्योंकि मैंने एक डोज तो दे दिया था दवाई का, बट दे बिलीव इन मोर ऑफ अ नेचुरल हीलिंग, दे मेक अस बिलीव के उन्होंने वो बोल दिया हम लोग कि डोंट वरी, आप कुछ नहीं होगा, जस्ट डोंट मतलब उसको दवाइयां मत खिलाते रहो, let his body rest, let his body detox, just trust us for 24 hours, उसके बाद वो खुद खेलने लगेगा। कुछ नहीं खाना है ना, रात थोड़ी उसे नहीं खाने दो, वो ठीक है सोना चाह रहा है सोने दो, बट एक्चुअली टेंशन वाला था, ऐसे इश्यूज हुए, बट लकीली लोग जो है वो काफी हेल्पिंग थे, वेलकमिंग थे एनी कंडीशन, मतलब ये कोविड सिनेरियो में भी उन्होंने हमें मदद की, दो वी वर नॉट फीलिंग वेल ऐसा। एंड जैसे राहुल ने बोला कि
बाय द टाइम वी रीच उदयपुर उसके पैर में बहुत बड़ा, ये बाबड़ी बोलते हैं हम लोग मराठी में उसे, तो उसका कांटा घुस गया था, वैसा इशू हुआ था। व्हेन हम लोग जब भी, हम लोग का सबसे ज्यादा जो ट्रैवल था जिस दिन कोलकाता से वाराणसी, कोलकाता टू वाराणसी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 तो आवर्स वो ड्राइव। 14-15 हमें ड्राइव करना था, और वहां पे बीच में स्टे का कुछ ऑप्शन नहीं है, गया है बट फॉर सम रीजन वी हैड कैंसिल दैट, मतलब दैट आल्सो वी जस्ट थॉट कि नहीं हम लोग ओके ठीक है हम लोग डायरेक्टली वाराणसी जाएंगे। तो वो टाइम पे ऐसे कि हम लोग का टायर पंक्चर हो गया वहां पे, सो वो थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ। फिर एक्चुअली व्हेन वी वर इन धनुषकोडी हम लोग से ये चालू रह गया। हाँ, धनुषकोडी में मतलब मैं थोड़ा वो ये हो गया बैटरी कि हम लोग मुंबई में ट्रैफिक मतलब रोड पे अगर साइड में पार्क करे तो वी कीप आवर पार्किंग लाइट ऑन, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ तो मुंबई का ये आ गया बीच में, आई केप्ट माय पार्किंग लाइट ऑन एंड वी फेल्ट के हम लोग आधा घंटे में बीच से तो आ जाएंगे, इतना नहीं होगा क्योंकि बीच में एक्टिविटी उतनी दिख नहीं रही। और जाने के बाद इतना सारा बीच पे खजाना था मेरे लिए, तो वी स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 hours देयर ओनली। वापस आने के बाद देख रहे थे पार्किंग लाइट चालू है, तो गाड़ी की बैटरी वहां पे ही खत्म हो गई थी। एंड खत्म हो गई थी मतलब आउट ऑफ 6 सेल्स एक सेल, 1 सेल में डेड पूरा चला, काम से चला गया था। तो वहां पे लोगों को जमा किया, धक्का बिक्का मारने के लिए बोला, तो गाड़ी स्टार्ट करवाई, तो वहां से लेके आया रामेश्वर, रामेश्वर से भी वेंट टू तंजौर। तो तंजौर में जाके जब ये प्रॉपर मुझे पता चला कि ये ओके यहाँ पे अभी कोई तो शोरूम या सर्विस सेंटर मिल जाएगा, तो वहां पे हम लोग ने चेक किया कि बट वो उसकी लाइफ ही खत्म हो गई थी एंड वहां पे वो चेंज करना पड़ा। एंड फॉर्चुनेटली जहां पे बंद हुई और जहां से चालू करनी पड़ी वहां पे लोग थे, नहीं तो वी विल बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वापस कायनात हमारे पीछे थी। No, यार, hats off to you guys. हाँ, हम लोग को बस वही कुछ मतलब वैसे इश्यूज, मतलब ट्रैवलिंग विद टॉडलर के साथ जो हम लोग का प्रॉब्लम्स एक्चुअल हुए वो उतने ही हुए हैं कि इनिशियली जब भी वो हुए ना तभी हम लोग उसे प्रॉब्लम बोल रहे थे, हाँ, बट नाउ वी आर ट्रीटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ जर्नी कि ये सारी चीजें एक्चुअली नॉर्मल होती है। बट जब भी होती है तभी जो डिफिकल्टी में आता है उसे टेंशन बहुत आ जाता है। बट मैं लोगों से यही कहूंगा कि टेंशन मत लो, Actually, you just need to ask for help, I guess. Yes, पहले जैसे कि yes, you should को ask. even मुझे फोन करते वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी इसे कैसे बोलूं कि ये है, but you just have to ask, you know, you just have to ask people for your help, then people will definitely help you in any situation actually. So वो sort out हुआ ऐसे. Okay, I have a follow-up question. ऐसे तो इतनी सारी आपने चीजें टच की इसी एक कॉन्वर्सेशन में कि हर एक पे एक सवाल बनता है, but just particularly on the issues with health. आज से 20 साल पहले तक I remember very clearly कि हम कहीं का भी पानी पीते थे. We never ever used mineral water. I remember very clearly. जहाँ भी जिस गांव में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, whatever is available. But marketing and awareness both together have brought us to a place where we use very sanitized, hygienic water at least, if not anything else. So how was that managed? Did you all buy water all the time? Did you drink whatever water was available, especially with the beer? Also food part, I mean, you cooked for him, I guess, but did you take those risks कि हाँ यार थोड़ा वो खाना वो खाए जो available है, but शायद he's not adapted to? Yes. So for your first question on water, okay, तो पानी का हम लोग का ऐसे था कि हम लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली कैंस कैरी किए थे हम लोग ने, ओके, मतलब 1-1 2-2 लीटर का नहीं, वी आर प्रॉपर कैंस ऑफ 10 लीटर्स। गाड़ी में हर वक्त 15 लीटर पानी रहता ही था, तो 15 लीटर्स के कैन कैरी गए थे। तो हम लोग जहाँ पे भी किसी के भी घर पे रह रहे हैं तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम लोग निकलते वक्त पानी वहां से भर के ले रहे। सो वी ने मतलब वो कभी ये नहीं कि हम लोग ने कि वो फिल्टर है या आरओ है, या अगर वो लोग पी रहे हैं ना घर पे हम लोग जिनके रह रहे हैं, तो वी यूज्ड टू रिफिल आवर अपना 10 लीटर का मतलब 20 लीटर का कैन वहां से। तो मतलब कभी कभी हम लोग ने उनके वेल से भी पानी भर के लिया है। कभी अगर धर्मशाला में रहते हैं जैसे, तो वहां पे तो आरओ ऐसे कॉमन पानी का कुछ ना कुछ होता है, तो वहां से। मंदिर में जनरली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था तो वहां से भर के लिए। पेट्रोल पंप पर भी ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल है तो वहां पे भी रिफिल किए। तब पानी पे हम लोग का ऐसे था कि पानी पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है एक्चुअली, कि पानी हम लोग का ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग अगर हार्डली कुछ
3-4 जगह पे ऐसे हुआ रहेगा, यू नो, जहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ सोर्स मिला नहीं टू रिफिल आवर बॉटल्स, तो हम लोग ने बाय किया। अदरवाइज थ्रू आउट आवर जर्नी जो भी अगर हमें लग रहा है कि इट इज सेफ टू ड्रिंक, हम लोग ने वहीं से पिया ऐसे। अभी आप कह सकते हैं हमने घाट घाट का पानी पी लिया। हाँ, यस यस डेफिनेटली। सो अब मराठी तमिळ 12 गावचं पाणी। सो यस तो वो एक पानी का था। फूड and Abir also he drank the same water. yes same water हम लोग मुझे तो लगता है वो पी लेता था, हम लोग को कभी कभी तकलीफ हो जाती है, पानी को टेस्ट नहीं लग रहा है, पानी का अलग टेस्ट है, लेकिन ये सारे कमेंट हमारे दोनों के थे, उसको कुछ नहीं हुआ, पानी पी के निकल गया, नो रिएक्शंस। एंड एक्चुअली जैसे आपने बोला घाट घाट का पानी, मुंबई में आने के बाद मैं घर का पानी पी के अलग लग रहा था, बोल रही थी कि मुझे ना ये अभी भी पानी अलग लग रहा है, ऐसे कि इतने जगह का अलग अलग सोर्स का पानी पिया। एंड एक्चुअली हाँ यस, हम लोग अबीर को भी सेम वाटर देते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे था कि ठीक है इतने यहाँ पे भी बच्चे हैं, वो भी पानी पी रहे हैं, लेट्स सी। ऐसा तो कोई जगह पे है नहीं हम लोग की जहाँ पे बच्चे नहीं है और वो पानी नहीं पी रहे हैं, ये जो मिल रहा है वो। तो वहाँ पे मतलब जनरली ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको पानी मिल ही जाएगा, वी आर लकी इनफ कि हम लोग को पानी मिला, बट आई विल एडवाइज यू कि ट्राई टू फॉलो योर गट, आजू बाजू देखो हाइजीन कितनी है, क्या है, फिर उस हिसाब से लो। एंड बट वी यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर हमें लग रहा है कि ये पानी अच्छा है तो वी यूज्ड टू रिफिल ऑल आवर बॉटल्स। हाँ पूरा वो हम लोग मैं लेके आ जाता था, करते थे कि नहीं ये भर के ही आगे जाना है ऐसे, तो वो था। एंड फॉर फूड एक्चुअली हाँ जैसे कि हम लोग ने कैरी किया था, बट हर एक जगह पे हम लोग को बनाना तो पॉसिबल नहीं था, तो जो कुछ भी अवेलेबल है वी यूज्ड टू गिव द सेम फूड टू अबीर ऐसे। मतलब वो पूरे जर्नी में एक आदमी उसने काफी सारी चीजें ऐसी खाई जो शायद वो घर पे खाने के लिए मना कर देता था, या तो उसके वो कंफर्ट जोन से बाहर थी वो सारी खाने की चीजें। एंड एक्चुअली हम लोग ने ये किया था कि पानी और फ्रूट्स हमेशा रहेंगे कार में, बेसिकली फ्रूट्स। तो हम लोग वी यूज्ड टू ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग के पास एटलीस्ट 2-3 टाइप्स के फ्रूट्स है, इनफ फ्रूट्स है, क्योंकि फ्रूट एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप लोग को हाइजीन का इतना कंसर्न नहीं रहता है कि मतलब वो कैसी आई रहेंगी, मतलब उसमें जो रहता है वो अलग से चीज है, बट अदरवाइज बट वी फाइंड कि मतलब सिटीज से जो हम लोग ने गांव कस्बे में जो फ्रूट्स खाए थे ना, उनका टेस्ट काफी अलग था। हाँ, सो एंड स्पेसिफिकली फॉर बनाना एंड पाइनएप्पल्स, तो उसको मतलब पाइनएप्पल इतना यहाँ पे पसंद नहीं था, बट कर्नाटक में यू गेट रियली स्वीट पाइनएप्पल्स, कर्नाटका, तमिलनाडु, मूडबिद्री साइड। तो हम लोग मतलब सो ऑब्वियसली उसका ऐसे होता था कि ठीक है मतलब डिनर के लिए कभी कभी उसने फ्रूट्स खाए काफी सारे, वैसे भी हुआ है तो जर्नी में ऐसे बहुत बार हुआ है कि वी ट्राई टू डू के बाबा जो आखिरी ये होता है फूड दिन का, मतलब डिनर वी यूज टू डू प्रॉपरली, क्योंकि तभी गाड़ी रुकती है और अभी गाड़ी खाने के बाद हम लोग सो सकते हैं। एंड एज माई परस्पेक्टिव एज ए ड्राइवर, मैं दोपहर का खाना ज्यादा खाता नहीं था, तो जहाँ पे पॉसिबल होता था अभी वी स्टॉप फॉर अभी। और लोकल मतलब कोस्टल में तो पूरे मजे थे, क्योंकि ही लाइक साउथ इंडियन फूड। हाँ एक्चुअली उससे वैसा हुआ कि थ्रू आउट टिल तमिलनाडु obviously you till Andhra actually you get dosa, idli, मेदू वड़ा and all those stuff, and वो अबीर खाता है, तो वो मिलने की तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, मतलब वहां से मतलब सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके रात को डिनर तक you get all these things, तो वो हम लोग को इश्यू नहीं हुआ कि क्योंकि डोसा है तो चावल वगैरह उसके पेट में जा रहा है ऐसे। एंड जैसे राहुल ने अभी भी बोला था, वी हैड कैरीड अमूल का टेट्रा पैक्स का पूरा क्रेट ही कैरी किया था कि अगर किसी जगह पे ऐसा हो कि कुछ भी नहीं मिले या वी आर नॉट कंफर्टेबल कि ये हाइजीन वाइज नहीं उसे दे सकते हैं, या तो फिर हम बना भी नहीं सकते अपना कुछ, ऐसा सिनेरियो अगर रहा तो एटलीस्ट ही कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क ऐसे। सो वो कैरी किया था। फ्रूट उसने ये पूरे ट्रिप में काफी खाया और हर एक फ्रूट खाया, क्योंकि एक्चुअली जहां जहां पे रहे ना तो वो कंसेप्ट उन लोग का बहुत था कि वो लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाते हैं, मतलब नॉट ओनली एट जुआन्स प्लेस बट देन वी स्टेड एट साधना, सो साधना फॉरेस्ट आल्सो, हाँ सो वहां पे भी वैसे ही है उनका, तो ऑब्वियसली ही आल्सो अडॉप्टेड दैट थिंग। मतलब उसने जब भी देखा कि अच्छा इतने सारे लोग बैठ के फ्रूट कट कर रहे हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट में इतने सारे लोग एक साथ बैठ के फ्रूट्स ही खा रहे हैं तो ही हैड इवन इन साधना एक्चुअली we were little worried क्योंकि वहां पे पूरा vegan food था, मतलब they don't even use oil and they don't even use any masala over there, okay, and सुबह में breakfast में you get only fruits, ऐसा सब था। बट एंड राइस भी मतलब हम लोग घर पे तो नॉर्मल व्हाइट राइस खाते हैं, बट वो जो यूज करते हैं वो रेड राइस या तो अलग लोकल जो रहेगा वो था। बट ही हैड दैट थिंग, मतलब उसने नहीं बोला ऐसे कभी भी कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। मे बी
यू नो वो सब लोग एक साथ मिल के खा रहे हैं, वहां पे भी जो छोटे छोटे बच्चे रह रहे थे वो भी खा रहे हैं, उनको देख के हो सकता है, या फिर कि अभी उसको भी पता उतना एक्चुअली इवन दे सेंस इट कि हाँ ठीक है यहाँ पे सच्ची में कुछ नहीं मिलने वाला है, जो है वो खाना ही पड़ेगा. तो वी जस्ट यूज्ड टू मेक श्योर कि इट इज हाइजीनिक, देन एक्चुअली वी गिव हिम एवरीथिंग, जो अवेलेबल फूड है वही. ऐसे नहीं था कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ठीक है. वी आर फीलिंग दैट ओके you can you know eat food over here, so वैसे. And after actually I guess once we start with Orissa na, you get lot of sweets and he has sweet tooth, okay. So तो उसका पूरा मजा था, दिन भर रसगुल्ले गुलाब जाम. Even we one day we मतलब तीनों ने हम लोग ने सिर्फ स्वीट्स ही खाया. तो मतलब तभी हम लोग ने उसे इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि यही खाना है या यही नहीं खाना है. When we were on travel, we were like okay, whatever he is comfortable with having, we actually allowed him to eat all the stuff. ऐसे मतलब कभी कभी तो उसने मतलब नहीं मुझे सिर्फ पाइनएप्पल ही खाने हैं, so we didn't force him to eat other things. We just tried and making comfortable कि okay तुम्हें ये चाहिए, you eat it as obviously, but we never give him all those Lays and snacks and all the stuff. बिकॉज हम लोग का ये था कि वो खाने से अच्छा यू ईट फ्रूट्स, जितने खाने खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का पिकनिक है नहीं कि ना हम लोग जस्ट ओके ये पिकनिक का दिन है चलो वन डे यू कैन हैव दैट चिप्स एंड वेफर्स एंड ऑल दो स्टफ. सो ये बड़ा ये था. सो वी एक्चुअली इवन वी डिडंट हैड इट, वी डिडंट बॉट इट ओनली, वी यूज्ड टू ऑलवेज बाय, अच्छा यहाँ पे फ्रूट्स अच्छे दिख रहे हैं, लेट्स बाय सम फ्रूट्स ऐसे. सो दैट्स हाउ वी मैनेज आवर फूड. बट ऐसे भी हुआ एक दो जगह पे जब भी उसे ऐसा मतलब जो घर का खाना टाइप रहता है ना वैसा. सो बेसिकली ही लाइक्स नीर डोसा, सो ही वाज लाइक नहीं आई जस्ट वांट टू हैव दैट ओनली, मुझे नहीं दूसरा कुछ भी नहीं खाना है, आज यही खाना है, आज यही खाना है बस. एंड ही न्यू कि हमारे पास सब चीजें हैं और हम लोग बना सकते हैं, ओके. सो ही वाज लाइक नो टुडे यू मेक ओनली, सो आई वाज लाइक ओके लेट्स मेक इट टुडे. सो एक्चुअली वो मेरे लिए थोड़ा मतलब कैरी तो किया था, फिर भी वो ऐसा थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर था. रोड में अगर खाना बनाना है कभी किसी को पड़े तो इट इज लिटिल आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. मतलब इनफैक्ट फॉर अस ग्रुप, ठीक है, सो यू आर जस्ट 3 of you and there is no one else, you know, जो आपके साथ है ग्रुप में. फिर भी ठीक है हम लोग 2 ही थे, बट ऐसा उसने 1-2 बार किया कि नहीं मुझे वही चीज चाहिए. सो बट देन आई मेड इट एंड आई गिव इट टू हिम. इट वाज आइस ब्रेकिंग फॉर अस रोड पे खाना बनाने के लिए कि यस चलो बनाना है. एंड जहाँ पे भी जैसे कि कभी हम लोग ने एयरबीएनबी बुक किया या तो ऐसे कभी जगह पे रहे कि उन्होंने अपना किचन हमें यूज करने परमिट किया कि ओके यू कैन यूज आवर किचन ऐसे. तो वहां पे वैसे हुआ तो आई यूज्ड टू मेक हिज कंफर्ट फूड एट देयर प्लेसेस कि मतलब ठीक है हमारे लिए नहीं हमारी है तो वो जब सबके लिए बनेगा वो, बट फॉर हिम आई यूज्ड टू मेक एयरबीएनबी का अभी बात निकला तो मुझे एक जस्ट फैक्ट शेयर करने के लिए मजा आ जाएगा कि एयरबीएनबी हम लोग बुक करते थे कपड़े धोने के लिए. हाँ यस. तो 10-15 दिन में अगर ऐसे हुआ कि नहीं बहुत कपड़े हो गए कि रोज या तो सूख नहीं रहे या ऐसे कुछ है तो वी यूज्ड टू बुक एयरबीएनबी विद वॉशिंग मशीन. तो वैसे भी हुआ था. यस लवली. आई थिंक गौरी का कपड़ों से रिलेटेड ही है, बट आई कम बैक टू दैट बिकॉज़ शी सेड हाउ डिड यू पैक योर clothes and accommodate in the car. But I think Priya has been waiting for a long time, so I think we'll take Priya on. Priya, are you around? Yes, thanks Ashita. Pleasure. Thanks for organizing this session. Yeah, truly valuable. So hats off to both of you. Yeah, I'm like awesome courage. I mean like it's a big thing कि आप लोग मतलब you know निकल पड़े बस you know. So and I wanted to you know experience this kind of thing. So when is your next plan by the way? Year end maybe. Post October. Winter. Okay, so let's catch up then. You know I would also to experience and do something you know dynamic for self and my daughter. Yes, we would love. You know. Sure. Yeah, that's it from my end. Okay, I'll keep in touch with you all. Sure. Thanks. Yes, thank you. Yeah. Thanks, Priya. Gauri, are you there? I'm not sure if she. No, she's not there, I guess. Oh, okay. So yeah, her question was, how did you pack clothes, and if not suitcases, because car has to accommodate utni hi jagah thi. So food, stuff, kapde,
How did you manage that? फूड तो जैसे हम लोग ने बोला वो सेक्शन ही हम लोग ने अलग रखा था, उसमें तो कपड़े कुछ नहीं था, इट वाज ओनली अबाउट फूड. तो जो क्लोथिंग के लिए हम लोग ने क्या किया था, अपने जो क्यूब्स रहते हैं ना कपड़े के ऐसे, तो जो कोई भी शेप ले लेता है बेसिकली, सूटकेस या ब्रीफकेस के स्टिफ It's रहता like a है ना, square specifically तो made हम लोग for ने packing your sari. हाँ तो जो सारी उस type कवर्स में एंड ऑल रहता है ना, सारी कवर्स कैसे रहते हैं, तो हम लोग ने एक्चुअली वैसे वाले बैग्स कैरी किए थे, और जिसमें हम लोग ने सेग्रीगेट करके कपड़े रख दिए थे. तो ऑब्वियसली वो थोड़ी जगह में काफी ज्यादा कपड़े भी आ जाते हैं, एंड एक्चुअली यू कैन जस्ट फिट इनटू दैट प्लेस. तो वो इशू नहीं रहता है, क्योंकि वो जो जगह पे आप लोग उसको दे दोगे, सो इट जस्ट टेक्स इट्स प्लेस. तो वी कैरिड ऑल आवर क्लोथ्स इन दैट सारी कवर टाइप्स ऑफ बैग्स. Okay, lovely. And I think Archana also has probably left by now, but yeah, I think a couple of them had asked if you have a picture of your car, inside car or something. So inside I car. do not have it right now. I need to check because we are But currently we'll share it. We'll share it on We'll group. share it on Drive group, पे or डाल we'll देते just हैं. ठीक है. And anybody else who wants to ask personally, and then I'll just go through the questions. Yeah, I had a question, Lena here. Hi, So, Lena. how do we join this group? And if you can add us, or how do we connect for more questions? Like maybe right now we don't have, but in future probably when when we are really planning. Okay, whenever you have questions, are you are in Tribe? Yes, I'm in Mumbai. I'm in Mumbai. We are okay. So our numbers are there. Anytime, whenever you need anything, you can just on the group. Yes, we where are is on the group. Poonam. Which group? I'm not aware of. I don't think she is a part of it. Are you part of any personal homeschooling, unschooling group, Mehul? No. I'm no. Okay. So then, how do we connect? Would you like to give your Insta handle? Yes, it's there. That will be fine. So you can type it, and they can, people who want to connect with you personally can do that. And otherwise, of course, you can become a part of the Tribe group, and different people keep. How do we get be a member of a Tribe group then? Mehul, then I'll kind of message you personally and leave my number with you, and I'll send you the link to join the group. Great. It'll be really really good. Yeah, I'll do that. Thank you so much. Pleasure. Yes, can we have more questions? Monali, did you have something? No, most of the questions were covered, through and through. Okay. Just I'm trying to share a. Okay. Insta. Outside, she's playing. See ya. Oops. Sorry, guys. Sorry. Okay, I had another question if nobody else is asking. So I have quite a few. No problem. Go ahead. Yeah. So, I think in India, especially, I think world over, but especially in India, we are, we grow up suspecting, we are told by family, friends, everybody, yahan mat jana, isse mat baat karna, aisa na karna, waisa na karna. Aise mein ek almost unplanned, let's take it, one day at a time, kind of a trip. How welcoming or inviting were people, especially strangers, especially people that you didn't know beforehand? Obviously, we also have a great culture as a paradox to this earlier theory, where people are extremely welcoming once you know them, or if you know them. My experience is that otherwise also, especially in rural areas, or in areas where there is cultural rooting, people are extremely welcoming to strangers also. But what was your real experience of what all kinds of experiences, especially with strangers? मतलब ऐसे जैसे आपने बताया कि रूरल एरियाज में they were more welcoming. Yes, it's there. So actually, it's happy. अच्छी बात है कि it's still there कि they are more welcoming as compared to us city people or urban people, because we try to हर चीज हम लोग एक किसी की मतलब उसको एक वैल्यू में डालने की कोशिश कर देते हैं, वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मनी.
but I would like to share एक दो experiences जो if you want to share with Mohan bhai. Yes, चलेगा. Actually, yes. It's from Kutch Dholavira. I guess metro cities से हम लोग जब भी आते हैं ना, as Rahul said, कि हम लोग का वो बहुत होता है कि किसी ने कुछ किया तो we just immediately we just wanted to value it in terms of money कि अच्छा इन्होंने खाने बुलाया है, मतलब खाना खाने गए या रहने गए, so we just ask people कि like ठीक है कितना हुआ है ऐसा. बट एज यू राइटली सेड कि जैसे जैसे हम लोग रूरल में जाते हैं ना, पीपल आर स्टिल वेरी वेलकमिंग एंड यू कैन एक्चुअली फील वो जो एकदम बोलते हैं ना रियल इंडिया वाला फील आ जाता है. कि एक तो when we traveled actually, तो हम लोग का almost 80% of the trip was in the rural area. Okay, we didn't been into the metro cities or things like that. So पहले तो एक वो बबल रहता है कि इंडिया है तो मतलब ये जैसे बम्बई दिखता है या मुंबई पुणे बैंगलोर है वैसे ही रहेगा पूरा इंडिया, ज्यादा से ज्यादा कितना रूरल हो सकता है ऐसे. बट वहां पे जाते तभी यू एक्चुअली सी एंड यू एक्चुअली फील कि ओके ये तो बस एक 25% ऑफ इंडिया है, बट रियल इंडिया जो बोलते हैं ना, इट्स देयर इन दैट रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब हम लोग को इतने काफी वेलकमिंग, जो मतलब हम लोग को पहचानते भी नहीं है वैसे. मतलब जब भी when we started traveling through तमिलनाडु and all the stuff, I remember कि हम लोग ने जो कुछ भी ऐसे सोवेनियर करके चीजें ली, या हम लोग किसी भी शॉप में जाते थे कि हाँ ये छोटा है बट ये हम लोग कैरी कर सकते हैं तो ये लेते हैं. और अबीर को अगर कुछ पसंद आया तो none of the actually shopkeeper have taken money for the things which Abir bought. Okay, so मतलब ये तो हम लोग मुंबई में expecting, obviously Mumbai is all about money actually, so obviously, but वहां पे ऐसे था कि हाँ नहीं ये इसे पसंद आया ना, ये इसने इसके लिए लिया ना, तो हम लोग इसका पैसा तो लेंगे ही नहीं ऐसे. So मतलब ऐसे एक्सपीरियंस तो वो हम लोग थोड़ा ये हो जाते थे, अरे आप नहीं लो, उसने लिया है ठीक है लेकिन आप फिर भी ले लो, तो वो लोग नहीं लेते थे. इवन लॉट ऑफ होटल्स, मतलब रूरल एरिया में जब हम लोग होटल्स में गए खाना खाने गए या ऐसे हुआ तो वो लोग ऐसे ही फ्रूटी अबीर को लाके देते थे, नहीं बेटा आप लो, आप रखो, आप पियो ऐसे, और उसका वो लोग बिल नहीं लगाते थे. तो हम लोग यूज्ड टू टेल देम कि अरे नहीं आप इसका प्लीज बिल में ऐड कर दो ये चीज, लेकिन वो लोग नहीं करते थे. तो वो मतलब ऐसे जो हम लोग थोड़ा ये रहता है ना कि बच्चों को लेके कैसे, बट बच्चों को तो हम लोग ने देखा कि वो लोग और ज्यादा प्यार करते हैं. मतलब उन लोग को ऐसे रहता था कि नहीं आप आओ, इससे थोड़ी इनका थोड़ी लेंगे, इनका तो हम लोग कुछ नहीं लेंगे ऐसे था. गांव में हम लोग रहे तो एक्चुअली उनसे तभी पहले बात नहीं हुई थी. वी जस्ट गॉट एक मोहन भाई करके है जिनका नंबर ऐसे वाया मिला था. तो लोगों ने हमें बोला था धोलावीरा में जाओगे तो उनको फोन करना, यू जस्ट एक्सप्लेन देम कि आप लोग क्या कर रहे हो या आपका ट्रिप का मतलब मोटिव क्या है, आप किस चीज के लिए घूम रहे हो, ही विल एबल टू हेल्प यू. तो हम लोग ने उनको फोन किया कि ऐसा चीज है, सो वी आर मतलब हम लोग का ये मोटो है और इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ, आप हमारे घर पे रह लेना और फिर आपको जो कुछ लगे वो दे देना ऐसे. तो हम लोग ने ओके ठीक है. तो हम लोग उनके घर पे गए तो देखा मतलब उनको पता था कि हम लोग बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब ये अबीर को देखा तो फिर उनको लगा कि उनका एक्चुअली जहाँ पे घर था वो बहुत ज्यादा एयरी है और तभी बहुत ठंडी हवा चल रही थी, विंटर स्टार्ट हुआ था और एकदम पीक पे था. तो उन्होंने फिर आके हम लोग को बोला नहीं आप घर पे मत रहो, मैं आपको यहाँ पे ही रूम देता हूँ. तो और वो रिसोर्ट का एक पार्ट था, तो हम लोग को ऐसे लगा अरे नहीं आप यहाँ पे मत दो हम लोग को, विल स्टे इन आवर कार, विल स्लीप इन आवर कार, दिस इज वेरी मच कंफर्टेबल, हम लोग यहाँ पे ही सो जाते हैं. बट वो लोग ऐसे थे कि नहीं आप नहीं आई अरेंज. तो उन्होंने ही एक दूसरा रूम हमें उनके घर के यहाँ पे अरेंज करके दिया. वी स्टेड विद देम. फिर एक्चुअली जैसे पहले बात हुआ था तो जैसे उन्होंने बोला था कि ठीक है खाने का तो जो है वो कर लेंगे करके, तो हम लोग एक रात उनके घर पे रहे थे, तो हम लोग ने उनको दिए तो वो आंटी ने लिए ही नहीं हमसे पैसे, फिर भी बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने आधे लिए एंड फिर आधे तो उन्होंने अबीर को ही दे दिया, नहीं मैं लूंगी ही नहीं करके ऐसे. एंड सब होने के बाद जब भी हम लोग निकल रहे थे तभी वो अंकल ने कहा कि आपने ना ये पैसे नहीं देने चाहिए थे, ये मुझे सिर्फ आपकी बात बहुत बुरी लगी. तो मतलब ठीक है. तो हम लोग को ऐसे लगा कि ठीक है, मतलब एक्चुअली हम लोग की बात हुई थी तभी वी डिडंट न्यू ईच अदर, बट बाय द टाइम वी लेफ्ट फ्रॉम दैट, मतलब बाय द टाइम वी वर लीविंग दैट प्लेस, एक्चुअली हम लोग की बहुत सारी बातें हुई. वो भी एक एनजीओ के लिए काम कर रहे थे तो बहुत सारे इंसाइट्स उनसे भी मिले कि कैसे था ढोलावीरा पहले, कैसे था वहाँ के कल्चरल इशू, पॉलिटिकल इशू, बहुत सारी चीजों पे बातें हुई थी ऐसे. काइंड ऑफ sharing space, kind of sharing our views, and after while living it is kind of establishing a new relationship.
तो वो एक अलग चीज हो जाती है जहाँ पे ऐसे लाइकिंग्स अच्छे हैं कि लोगों को पता चलता है कि आप क्या, आपका ये ट्रिप या ऐसे कुछ घूमने का मोटिव क्या है. दे कम अप एंड दे स्टैंड फॉर यू, दे हेल्प यू इन अ सेंस कि नहीं ये मतलब हमारा ही है. आउट ऑफ द वे जाके ये help करते हैं, करते हैं. मतलब और मतलब वही पे ऐसे हुआ कि ऑब्वियसली कच्छ गुजरात वो साइड थोड़ा सिल्वर ऑर्नामेंट्स काफी अच्छे हैं वगैरह से सुना था, तो मैंने वो उनको बोल रही थी उनकी बीवी को कि आप लेके जाओगे क्या, मुझे देखना है करके ऐसे. बट एक्चुअली हम लोग जिस डे पे वहां पे थे वो डे पे बंद रहता है, तो उन्होंने बोला अरे बेटा आज तो बंद है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है ऐसे. तो मैंने ठीक है. तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग एक्चुअली चले गए, लेकिन वो दिन पे ऐसे था कि हमें हमारा ढोलावीरा देखने में ही पूरा एक दिन गया. एक्चुअली वो साइड देखने में ही पूरा दिन गया. और फिर वहां से आगे जो जाना था लखपत के लिए, तो वो रोड काफी ब्यूटीफुल है और वहां पे फिर बॉर्डर का पासिंग वगैरह लगता है. तो रात को हम लोग ने सोचा यहाँ पे हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो हम लोग सुबह जाते हैं. तो हम लोग ने वापस उनको फोन किया कि हम लोग और एक दिन आपके यहाँ पे रह सकते हैं क्या. तो दे वर वेरी वेलकम, आ जाओ आ जाओ. और फिर वापस हम लोग उस उनके रात पे घर तो हम पे लोग रहे, ने पार्टी की थी एक्चुअली. तो एक्चुअली वी पार्टी दैट नाइट एंड वो आंटी जाते वक्त मुझे उनकी रिंग देने लगी. अरे नहीं बेटा आपको कुछ मिला ही नहीं ना चांदी का. आई वाज ओवरवेल्म्ड. आई वाज सो, मतलब मुझे समझ से ये हुआ कि अरे नहीं नहीं इट्स ओके, मतलब मुझे पसंद था, मुझे देखना अच्छा भी लगता था, बट नो मतलब आप नहीं. बट शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं. मैंने उनको कैसे वैसे करके समझाया, अरे नहीं ओके ठीक है आई लाइक दैट बट यू प्लीज कीप इट विद योरसेल्फ. So they are still that welcoming and मतलब yeah pure souls. तो मतलब ऐसे था ना कि बट हाँ मुंबई के बारे में कुछ लोगों ने भी हमें बोला भी है, मुंबई वाले, लेकिन हम लोग जब भी मुंबई में आते हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है. तो अगर आप फ्री भी नहीं रहेंगी तो भी विल बी ओके विद इट. आई वाज लाइक ओके. बट यस रूरल इंडिया इज स्टिल वेरी वार्म एंड वेलकमिंग. एक्चुअली काफी वेलकमिंग है. मतलब हम लोग को ऐसे मतलब मैं ऐसा, ये तो अभी मैंने 2-4 बोले, बट ऐसे काफी एक्सपीरियंस मैं आपको बता पाऊंगी जहाँ पे just after knowing what are we doing and why are we doing, people called us at their places and ऐसे ही नहीं कि मतलब उन्होंने हम लोग का काफी मतलब एकदम they made sure that we are very much comfortable staying at their places. लोग को मतलब खाने की ऐसे ये दावतें मिली. So yes, people are still जिनके घर पे रुके थे, मतलब जामनगर में हम लोग एक सीएम करके हैं अपना छगन भाई करके, उनको हम लोग सीएम अभी बुलाने लगे. तो मैं ऐसे लग रहा है कि उनसे बहुत सालों की पहचान है. तो उनके भाई के घर पे हमें न्योता आ गया, अरे आप सीएम के घर पे आए हो तो हमारे घर पे भी आ जाओ. तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वहां पे एस्टेब्लिश हो चुकी है अभी कि आगे जाके अरे नहीं पता चलेगा नहीं. अभी वी आर वेरी मच अश्योर्ड कि नहीं, इट इज काइंड ऑफ अ एक्सटेंडेड फैमिली नाउ. और ऐसे मतलब काफी सारे मतलब ये है अच्छे इंसिडेंट्स ही है जो कुछ भी आए लोगों के साथ. मतलब दो हम लोग या वो लोग हमें नहीं पहचानते थे, फिर भी लैंग्वेजेस अलग अलग थी, पूरा कल्चर अलग था, still they were very open and very welcoming. और मनु का कोई क्वेश्चन था क्या? हम लोग उसी क्वेश्चन में बहते चले गए. नहीं अभी नहीं था बट ऐसे बहुत सारे और आ गए हैं, बट अभी नहीं पूछूंगा और लोगों को पूछने देते हैं बाद में. ओके थैंक यू. यस थैंक यू मनु. Yeah, somebody, I mean, please feel free to ask either type, or we would love to hear you, see you, if you wish to ask Poonam and Rahul, if there's something on your mind. Because yes, I think it's a journey. खैर सिर्फ 75 days number लगता है, but उसमें जो आप लोगों ने जिया है and the treasure that you've kind of, you know, collected or amassed is amazing. I think I don't know कितने सेशंस में वो कभी हम फील कर पाएंगे कि नहीं. But yeah, it's been absolutely lovely hearing you both. और मैं यही सोच रही थी कि language barrier, you know, था, how did you kind of work around, and you know, like Manu is pretty quick to learn on languages and I'm not. So, but how did you break through, or how did conversations happen? You know, that's probably a challenging question for me. यहाँ पे मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि मैं
मतलब ये जो सोचने का प्रोसीजर है ना, वो शायद मेरे दिमाग में है ही नहीं. I directly, when the things or when the questions or when the problems pop up, I come up with the answer without that actual process, and I will go and directly go and solve the processes. Sorry, solve the problems or solve the question. Try to find the answers. So many times ऐसे हो जाता था कि अभी सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि क्या हम लोग हैं, मतलब हम कहाँ से, they are not understanding हिंदी और they are not understanding English as well. So connect कैसे करें? तो वहां पे ऐसे हो जाता है कि you have to connect emotionally, और बाकी सभी चीजें अपने आप बहने चालू हो जाती है. तो दैट इज माय पर्सपेक्टिव, जहाँ पे मैं मतलब बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. इवन हम लोग बात कर रहे हैं पैसे कितने देने हैं पता नहीं, तो देयर आर डिफरेंट साइंस यू कैन डू इन परफॉर्म, तो वो लोग भी हंसने लगते हैं. हम लोग कच्छ में थे एक जगह पे, तो वहाँ पे कच्छ की दादी जी जिनके घर पे हम लोग रुके थे, तो मतलब वो सुपर 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 डुपर कूल थी, और उन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बातें कर रही है, बट शी वाज, मतलब वो हम दोनों को प्रेस कर रही थी, मतलब थोड़ी अच्छी बातें चल रही थी. तो मैंने उनके पास देखा और जस्ट आई स्माइल, एंड उन्हें भी पता चला कि मुझे समझ गया है. तो उन्होंने अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में और कुछ ऐसा बोला कि तो होशियार है कुछ, तो ऐसा मतलब द सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग. तो आई अंडरस्टूड कि मैंने अगेन आई स्माइल. तो हम दोनों को पता चल गया कि हम दोनों को वो जो भावना जो होती है वो मतलब वो मिल गई है. वो चीजें मतलब मीनिंग जो होता है, इट्स नॉट ऑलवेज इन लैंग्वेजेस, इट्स काइंड ऑफ जस्ट गो एंड कनेक्ट, जस्ट टॉक एनी लैंग्वेज, कुछ भी. फॉरगेट अबाउट अस. अबीर, हम लोग अबीर के बारे में अगर बात करें, वी वर इन पौंडीचेरी, और ईसाई अम्लम करके एक होम स्टे है, वहां पे हम लोग रुके, हॉस्टल है, वहां पे हम लोग रुके थे. तो एक बंदा ऐसे ही मिल गया जो पंजाब से था, और उसको और हमारी वेवलेंथ अच्छी जुड़ गई. तो हम लोग तुरंत मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 20-15 मिनट्स ऑफ अराइविंग एट द होम स्टे, वी स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर. और बीच में मैं देख रहा हूँ कि अबीर गायब है. तो हम दोनों ढूंढे अबीर है कहाँ. तो जस्ट ऐसे खिड़की से झांक के देखा, बाहर वो किसी फॉरेनर के साथ बात कर रहा है. ही इज स्पीकिंग इन मराठी, द फॉरेनर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, और एक दूसरे को क्या समझ में आ रहा है पता नहीं, बट दे वर लिटरली टॉकिंग विद ईच अदर फॉर 10 मिनट्स. And we were like, I don't know, बेचारा फॉरेनर से कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि अबीर क्या बोल रहा है, बट उनके दोनों के चेहरों पे स्माइल था. तो आई कैन अश्योर यू कि दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर, कन्वे समथिंग टू ईच अदर. सो आई गेस लैंग्वेज वैसे हाँ उतना बैरियर नहीं आया. मोरल ऑफ द स्टोरी, कनेक्टिंग पीपल वाज वे इजी व्हेन वी आर ओपन, और जाके सिर्फ अप्रोच करते हैं ना, अप्रोच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कनेक्टिंग. एक्चुअली ना हम लोग के मतलब लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ तो सिमिलर वर्ड निकल में आ ही जाते हैं, जिससे हम लोग बेसिक, हाँ ऐसे हम लोग गप्पे नहीं मार सकते, बट बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हो जाता, मतलब उतना हो गया वो कि हाँ ठीक है हम लोग कर पाए कम्युनिकेशन. आई विल नॉट से कि मुझे लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेजेस समझती है या बात करने के लिए, बट वाइल कनेक्टिंग जो इनिशियल लगता है, तो फर्स्ट स्टेप अगर आप ले लोगे तो इट इज इजी टू कनेक्ट एंड इजी टू कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज. थोड़ा टाइम लगता है, बट मेनी टाइम्स ऐसे हो जाता है कि द आइस ब्रेकिंग विल टेक मोर टाइम देन कम्युनिकेटिंग. द आइस ब्रेकिंग इज द इनिशियल पार्ट, जो जितने जल्दी आप आइस ब्रेक करो, जाके बात करो, तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी. हाँ बट ये जैसे ही बोला उसने कि बट थ्रू अबीर के पर्सपेक्टिव से ये हमें बहुत मजा आता था, बिकॉज यू नो आफ्टर फ्यू डेज ही स्टार्टेड आस्किंग कि लोग हम जब भी बात करते थे कि अच्छा ये उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में बात की है, ये कौन से लैंग्वेज में, सो यू यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ अलग भाषा में बात करे. मतलब ठीक है हिंदी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत वो सुनता है कि मतलब ठीक है सुनने में आया तो ही नो कि अच्छा ये हिंदी में, इवन गुजराती नो कि अच्छा ये गुजराती में बात करे. बट देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस ना, तो वो हम ऐसे पूछ रहा था अच्छा हम लोग अभी कौन से स्टेट में, अच्छा फिर ये कौन से लैंग्वेज में बात करें, तो वो हमें अच्छा लग रहा था कि ओके सो ही इज यू नो ऐसे एटलीस्ट ही इज ऑब्जर्विंग थिंग्स कि ऐसा ऐसा हो रहा है. इवन फॉर यू नो क्लोथिंग आल्सो ही इज ऑब्जर्विंग द थिंग्स कि अच्छा रूरल में है तो सिटीज में जाते हैं तो इतना ज्यादा हम लोग को डिफरेंशिएट नहीं नजर आता है आउटलुक में, बट हम लोग जैसे गांव से जा रहे थे तो ऑब्वियसली वो आउटलुक काफी चेंज होता है. मतलब कच्छ के ऊपर वाला पूरा साइड में वहां पे पठानी पहनते थे, या फिर केरला मतलब साउथ अपना लुंगी होता था, फिर ये साइड में दे यूज्ड टू वेयर गमछा. सो वो सारा चीजें भी ही यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड वी यूज्ड टू मतलब वो थोड़ा कॉन्शियस भी था कि कॉन्शियसली वी यूज्ड टू कन्वर्स अबाउट इट कि ओके ये तो ही यूज्ड टू also say कि अरे हाँ ये अभी डिफरेंट है, ये किसी स्टेट एंटर किया दूसरा एंड यहाँ पे ही सीज की ठीक है यहाँ पे इनका पहराव थोड़ा अलग है. सिमिलर इवन
घर काफी अपने यहाँ पे स्टेट वाइज घरों का स्ट्रक्चर, रूफ का स्ट्रक्चर चेंज होता है. सो वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट अबाउट इट आल्सो कि अच्छा यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है वहां पे. सो जितना वो समझ पाए या उसके दिमाग में कुछ अगर क्वेश्चंस आए, सो ही यूज्ड टू आस्क कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है. सो ऐसे था पूरा. हाँ, sorry. Yes, absolutely. So I think all in all, total fun. वो तो मैं deny नहीं करूँगी. But is there anything else, मतलब challenges or you know क्या हमें, of course जो मुझे समझ आया है कि बहुत planning तो काम नहीं आती है. Because I think जब आप day to day live कर रहे हैं एक नए you know ground zero पे जा रहे हैं, so you have to kind of just start from scratch everywhere and anywhere. But anything else that comes to your mind and you feel कि यार नहीं ये तो you know होना ही चाहिए, या ये हम बिल्कुल मिस कर गए, और you know ऐसी सी feeling थी है, या it was just go with the flow and things will happen? Actually it's a go with the flow, things will happen, but it was more of irrespective आप flow में अगर जाते भी हो तो थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है with respect to our अपना जो ये होता है लाइवलीहुड टाइप, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक कि वी स्पेंड जो जितना भी एक्सपेंसेस हुआ दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट फॉर दिस जर्नी जो एक सडन क्लिक होता है ना कि करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड सेकेंडली आई विल अश्योर यू कि आप कोई भी पॉइंट पे अगर सब चीजें रैप अप करके 2.5-3 महीना इज नॉट अ स्मॉल पीरियड इफ यू आर इन डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस. सो वो देखने के लिए वो पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है कि whenever you doing you have to stop something and you have to start something, and when you are starting something don't forget you can start it from any point and when you want it you can stop it at any point. Just remember जो start और stop है that is just 2 points. In between जो journey है that is most important. तो आप कैसे शुरू करते हो, क्यों शुरू करते हो, इसके लिए मे बी बहुत सारे रीजंस या बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बट एज आई से जो रिसर्च पार्ट है वो सब पूनम देखती है. तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाओ तो आई लिव दोज मोमेंट एंड आई एंजॉयड अ लॉट. आई डोंट नो what I learned, what Abhi learned, that is a non-tangible with my perspective, but we 3 enjoyed a lot, I can assure you, and I will cherish those moments. And ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो while doing this trip we already planned our next trip कि बाबा नहीं और नवंबर में कहीं तो जाना ही है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे पे नहीं सिखा सकते, जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में ही और दूसरों को देख के ही सीखी जा सकती है. तो आई विल से कि दीज आर द चैलेंजेस, बट ये जितने डिफिकल्ट लगते हैं उतने है नहीं, और जितने इजी लगते हैं उतने है नहीं. तो इट इज अ 2-way काइंड ऑफ अप्रोच. बट यस, अगर आपको लगे और इफ यू आर फीलिंग इन दैट वे, जस्ट प्लान इट इन अ वे कि आप करो, मतलब डोंट जस्ट प्लान इट ऑन पेपर, प्लान इट वेरेवर यू वांट एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. सो उसमें जो मजा है वो अलग है. And challenges, Ashita, as you asked कि ऐसा नहीं लगा क्या कि ये मिस किया या तो फिर ये भी कर सकते थे ऐसा. तो एक्चुअली मतलब पूरा अगर कोर्स हम लोग वापस करने लगे ना तो हम लोग को 1 साल भी कम पड़ जाए. So there are lots of things which we know we just like okay there are these things but we cannot do it for some or the other reason कि नहीं वहां पे सिर्फ जाके सिर्फ वापस आना है, वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए तो वो नहीं जा सकते. देन देयर वर जैसे कि हम लोग कोविड में थे तो वो एक चैलेंज हो गया किसी जगह पे कि और न्यू ईयर आया बीच में एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे. तो न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग के यहाँ पे मतलब जर्नी में तो ऑब्वियसली वो तभी काफी सारी चीजें बंद थी. जैसे वी वर इन वेस्ट बंगाल साइड, तो वहां पे फिर मतलब या फिर जब भी हम लोग जगन्नाथपुरी में वगैरह थे तो मंदिर मतलब 31 से 2 तक बंद था. व्हेन वी रीच वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो बेसिकली टूरिस्टी प्लेसेस थी ना वो सारी बंद थी तभी, और वो भी मतलब 3-3, 4-4 दिन के लिए. व्हेन वी रीच द्वारका, तो द्वारका का टेम्पल 7 दिन के लिए बंद था. सो ऐसे काफी सारी चीजें हैं ये पूरे ट्रिप में भी जो हम लोग ने नहीं की या नहीं कर पाए फॉर सम अदर रीजंस. So yes, there are a lot of things which we didn't do it, but we are just focusing on the things which we did. Actually, so yes, so वो एक है कि हाँ मतलब
वैसे फिर देखने जाएंगे तो वो अलग से लिस्ट बन जाएगी कि क्या क्या नहीं किया है. True. So I think जो मुझे समझ आ रहा है, to take disappointments in your stride, जो हम डेली लाइफ में अपना स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली as women, क्योंकि हम लोग एक एक चीज यहाँ पे देखते हैं, अरे यार ये नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया. So I think travel teaches you, helps you to just let go and kind of go with the flow. Yeah. So वही है, and I think of course अबीर का अपना learning रहा होगा, and which शायद आपको धीरे धीरे समझ आएगा, because he'll put it into practice step by step जब वो process कर लेगा. Yes. That will also be a very beautiful kind of journey to see him apply जो उसने absorb किया, जो शायद आपको लगा होगा कि वो ध्यान नहीं दे रहा था या उसने शायद नहीं देखा. To see that. उसके खुद के calls थे during trip कि मुझे लाइट हाउस नहीं देखना है, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे मट्टी में खेलना है, आप चाहिए तो जाके आओ, मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा. तो दैट काइंड को तो वो अच्छा था कि मेनी टाइम्स ऐसे भी हुआ कि हम लोग वाइल ड्यूरिंग जर्नी हम लोगों ने कुछ बहुत सारी जगह देखने गए और वी डिडंट सी दैट. हम लोग वहीं पे बैठे सैंड में और ही इज प्लेइंग फॉर 2 hours 3 hours जितना टाइम उसे खेलना है, बट ही एंजॉयड. Yes, so there was actually a time when west coast अभी हम लोग ने किया तो काफी सारे मतलब west is more touristy है जैसे कि, तो काफी सारे बीचेस पे एंड ईस्ट में हम लोग जाते जाते वो कोविड का वापस से शुरू हुआ था, बट वेस्ट में जब भी हम लोग थे there were days कि continuously like 7 days in a row or 8 days in a row, every evening we are just going on the beach and he is just playing for 2-3 hours and then we are again coming back or staying at the place and we are just not doing. And so there was a one stay where we stayed every day. We used to just go somewhere and then afternoon Karwar, and then afternoon it was like it was बहुत ज़्यादा गर्मी थी कारवार में. Okay, so हम लोग को घर पे ही आना पड़ता था. So we used to come back and every evening we used to go to the same spot on the beach and he used to play. So वैसे भी काफी हुआ कि मतलब काफी जगह नहीं देखी, एक ही जगह पे जाके we are just doing that place. And one more thing is we actually got to know कि अगर अभी वापस हमें वो रोड करना है तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें अभी को लेके जाना ही है. जैसे कि तपोवन आश्रम है. So now we know that okay, or anyone of is planning for unschooling trip or road schooling trip, like from the children's perspective, so we can just tell okay these are the places you should go. So जैसे कि अभी मैंने बोला साधना है, वैसे साधना forest is the place, then Tapovan ashram is the place, or like Juan's place, they are up on the workaway thing. So if anyone wants to go there, they can stay and they can work on their farms, things like that. So now we know कि okay, so we felt कि okay यहाँ पे हम लोग ज्यादा दिन अगर अब हमारे हाथ में होते थे तो we could have spent even more days. मतलब फिर भी हम लोग 3 दिन रहे, but वो क्या बोलते हैं जस्टिफाई नहीं कर सकते 3 दिन में वो जगह को ऐसे. So ऐसी काफी सारी चीजें हैं लिस्ट है, मतलब वो एक कि अभी वापस जो रीडू करनी है ना चीजें, वो उनका भी एक अलग से लिस्ट है कि ये रीडू करनी है वापस आने वाले सालों में. Great. Thank you so much, Poonam and Rahul. I think 2 घंटे कम होंगे because we would obviously love to hear more and in details, but I guess हाँ आज के लिए हमारा इतना ही kind of encapsulated time है. But there is a lot that we've learned, we've absorbed, and inshallah हम लोग भी रोड से जल्दी निकलें since आप लोग inspire करते ही हैं. So yes, it's absolutely been wonderful listening to you and all our viewers who've been there. So the YouTube link is there. If somebody's missed it, you can check it out. And Rahul, एक बार ही वापस शायद आप Insta handles डाल दीजिए ताकि अगर किसी को चाहिए, they can connect with Poonam and Rahul personally. Also, I think आप लोगों ने कुछ pictures और कुछ videos journey के डाले भी हुए हैं ना? Yes, हाँ, वो काफी कम है actually for the time, but yes, we'll just keep on updating and keep on adding videos and messages. So you can always kind of visit that. Yeah. And बाकी तो totally ये Insta handles हैं ना आपके? हाँ, ये Insta handles है Rahul Poonam.lad actually. Yeah. And sorry. No. So just to button right at the end, बहुत सारे सवाल पैदा हुए आपके इन experiences से, और मेरे ख्याल से उनके जवाब आप अपनी ट्रिप
सही आदमी ढूंढ सकता है. Yes, actually. Thanks for Yes, encouraging. yes. Thank you, Manu. Thank you so Yeah. much, Manu. It's a treat. Thank you. Thank you. Yeah, Monali, are you there? Yeah. Yes. It was so inspiring, and I was just about to ask a question, and when Ashita said the capsule time, and I was like, 7:28? Oh my god. If they're comfortable, I'm okay with it. Yeah. Yeah, okay, Monali, Take cool. it. And when I looked at the time, I was Yeah, like, even I didn't 7:28 get- कैसे हो गया? Okay, और कब हो yeah. गया? Almost 2 hours. It is like 2 hours. You didn't even come to know, you know. So that's something 8 minutes. I know मैं honestly toilet break भी नहीं ले पाया. ऐसा नहीं मैं कुछ मिस कर जाऊंगी अबीर के बारे में. I'll hold on and then we'll kind of carry on later. Surely, we are also trying to मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही थी, तो मे बी हम लोग मतलब ब्रांचिंग आउट बहुत हो गया होगा, बट वी आर ट्राइंग टू जॉट इट डाउन एवरीथिंग, और वी आर ट्राइंग टू कंपाइल इट ऑन एलो बेलो स्टोरीज यूट्यूब चैनल सून. वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो होपफुली थोड़ा वो Take your time, live those moments, reflection, कितना कुछ होगा, वापस आके unpack करना है. Just not the saman, but what you've absorbed and lived there, Yes, definitely. So, yes, that's brilliant. Yeah, Monali, do you want to go ahead? Yeah. So, yeah, but then this is so inspiring. अभी भी बहुत questions हैं. Personally भी आएंगे राहुल, और हम शायद एक और session भी कर सकते हैं. There's so many people. I think, I'm sure एक बारीकी of the details, and उससे I think somewhere जो राहुल तुमने कहा ना, you have to start doing it. I think that's the trick to everything in life. Everything, not Definitely. I truly believe in that. Yes. And तुम लोग हमेशा से inspiration रहे हो for us, or at least for me, to do so many things in my life. So it is kind of a pat Monali, ये उल्टा है. ये नहीं, pat on the नहीं. back. We should be saying this to two of you actually, and to Manu and everyone out there. कभी-कभी चीजें होती है ना, तो मतलब होती है वहां पे, लेकिन आपको दिखाने वाला भी कोई तो चाहिए. तो ट्राइब एक्टेड लाइक दैट कि बाबा नहीं, आप लाइक जब भी मैं आशिता से जब बात करता था तो ऐसे ही होता था, करो, अरे हो जाएगा, अरे करो. तो इनिशियली जब भी मैंने ऑनलाइन पहला सेशन लिया था, उनसे मैंने आधा घंटा बात करी थी. आई एम नॉट अ ऑनलाइन पर्सन, मुझे क्या बात करनी है, मतलब लैपटॉप के सामने बात करना मतलब मेरे लिए थोड़ा पागलपन से जैसा हो जाएगा. मैं क्या बात करूंगा मुझे पता नहीं. तो शी सेड कि जस्ट डू इट. एंड वो अभी मतलब कोशिश अभी भी करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बहता चला जाता हूँ, बट आई एम लविंग इट नाउ, सो आई एम लाइकिंग इट. सो मजा आ रहा है. तो इट इज काइंड ऑफ हम लोग एक दूसरे के साथ जो रहते हैं ना, दैट एक्टेड मतलब लॉट मोर देन एनीथिंग एल्स. सो जो चीजें मुझे ट्राइब से मिली है, तो हम लोग करने की जो कोशिश करते हैं, उसे एक टाइप का इनसे मतलब बोलते हैं ना, पीठ पे थपकी लगती है, तो दैट मेक्स यू डू इट. True. I think, yeah, it's true that it's a mutual learning for all of us, because हमारी मतलब जो हमारी in the sense जो community है और जो बनता जाता है इस community में, उसका यही मजा है that it's a free flowing, anybody coming in, anybody leaving, जब जो जैसे जिसको सूट करता है, just be there. But उसी process में हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख जाते हैं और inspire हो जाते हैं. So, yep, absolutely. हम बहुत जल्दी एक ट्रिप साथ में प्लान करेंगे अब. Yes. एक वाइब आ रहा है और बहुत जल्दी. I think वही वाली बात है, हम लोग keep this mantra in mind. कोविड में बहुत ज्यादा kind of breaks लगाए, और माइंड में भी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा लगता है करें नहीं करें. But taking from this session and this talk, I think we should just plan it. जो आ सकता है आए, जो नहीं आ सकता है नहीं आए, because they all have to take care of their own safety. And let's just plan a trip soon. And I think Rahul and Poonam, you're starting your treks and everything also in November. So brilliant. Looking forward to action now. Yes. Thank you so much. Take care and धन्यवाद. Thank you everyone. Actually, yes. Thank you all for being there and listening to us. Thanks. Bye.